نہیں جانا پردیس۔ بڑے بڑے نامور اولیاء کرام پیدا ہوئے ہیں، مجھے یہ فیض 1992 میں اتفاقیہ طور پہ ملا۔ 3 سال تک میرے پہ جذبی کیفیت رہی اور بازار حسن میں پھرتا رہا۔ وہاں تقریباً سارے جتنی بھی بچیاں ہیں مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتی رہی۔ میں اسی دوران میں جذبی کیفیت میں بازار حسن کی ایک لڑکی کے پاس گیا۔ اسے میں نے کہا کہ تو مجھے دوار سنا۔ میں بجائے دوار کے یہ سنانے کے سنانے لگی مد بڑیاں نینا لائیاں جڑیاں استاد اکھیاں کتنے جا لڑیاں۔ پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت آ رہی ہوئی، ساتھ ساتھ چڑیاں بھی آنکھوں میں لگی ہوئی تھی اور پتہ نہیں کس درد سے گا رہی تھی۔ تو بابے پہ وجدانی کیفیت آ رہی ہوگی۔ بابے نے یہ کہا کہ بابا آج پتہ لگا ہے کہ مد بڑیاں کیا ہوتی ہیں۔ ابھی بابا آپ کو خبر نہیں ہے کس بات کی؟ کہ گولے سرکار کا میرے لکھا کا کلام ہے۔ بابا موج نے کہا کہ جا بیٹا جا، تیری آواز سے دکھی انسان دکھوں سے نکل جائیں گے، بدبختی سے نکل جائیں گے۔ پہلی بار مجھے پتہ لگا کہ موسیقی کے ذریعے بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ پیر کی آواز سے ریڈیشن ہوتی ہے، اس کے بولنے سے ہوتی ہے، موسیقار کے درد بنا کے گا جانے سے ہوتی ہے، رقاص کے اپنی ذات میں ڈوب کے روبرو ہو کے کسی کو سنائے گا نہیں تو اس کی کیفیت تازی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے سب ضروری ہے کہ وہ کسی کو ٹارگٹ بنائے، کسی کا تصور باندھ کے وقت لگائے۔ دونوں صورتوں میں موسیقی کی صورت میں بھی، گانے کی صورت میں بھی اور ہمار لگانے کی صورت میں اس کی کیفیت حال کی تاری ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ کیفیت تاری نہیں ہوگی 6 گھنٹے دماغ لگاتی رہ جاتا رہے کو ایسا نہیں ہے۔ اس کی اوپر کیفیت تاری ہونا شاید ضروری ہے۔ یہ اس کا کمال ہے، نہ غزل کا کمال ہے، نہ لفظوں کا کمال ہے، نہ اچھی سر کا کمال ہے، نئے آئیڈینس کے اپریسیشن کے اسے تو اپنی خبر ہوتی ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہے جو تو لوگوں سے بیگانہ ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ لوگ بعد میں بتاتے کہ ہم ٹھیک ہو گئے۔ تو مجھے تو یاد نہیں پڑا نومبر کہ میں نے زندگی میں کوئی ایسی حرکت کی ہو کہ جس سے میں اس لائن میں پڑھ جاؤں یا میں اس لائن میں بیٹھے ایک ہوا جی کہ چلو یہ کام کرتے ہیں تو یہ شفٹ یہ نہ ہوا تو وہ ایک جیسے زندگی میں ٹرن آنا تھا وہ ہو گیا۔ کوئی بری آتے ہیں نشے ویسے چھوٹ گئے۔ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ اس وقت تک اس کی دوال اور گانے سے 500 کے مریض قریب مریض لا علاج مریض ٹھیک ہوئے۔ اور کمال کیا ہے، یہ جسم کے ناچنے کودنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ رقص کی ایک قسم نہیں ہے بلکہ روح کی خوراک کے طور پہ بے ساختہ آدمی کا جسم کنٹرول سے باہر ہو کے بے خود ہو کے ناچنا شروع کر دے۔ کمال ہے۔ اگر وہ انتشار طبع کا رقص جب بنے تو وہ موسیقی ہے، وہ رقص نہیں ہو سکتا ہے، وہ دوال نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو فوج کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے انتشار طبع ہونے کی بجائے کنسنٹریشن مل جائے اور اتنا دکھی رہے ہر وقت کہ لوگوں کے دکھ چھیننے کی سے عادت پڑ جائے،
اللہ کی شان ہے. جب بابا جی کے ساتھ گئے تو اس سے پہلے سوچ تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کوٹھے والے کیسے ہیں, کیسے لوگ ہیں, برائی کیا ہے, یوزل سے بنیادی طور پر. لیکن جب اس پہلے کوٹھے پہ گئے ہیں, دوسرے پہ گئے ہیں, تو اس کے بعد ایسا لگا جیسے محسوس یہ ہوا جو نتیجہ ہے کہ خدا جو ہے وہ پاکیزگی میں نہیں ہے صرف کہ جی خدا جو ہے آپ کو مسجد میں ملے گا. اگر خدا مسجد میں ملنا ہے تو جو ڈاکو جاتا ہے اس کو بھی خدا مان کے جاتا ہے. وہ بھی خدا ہر جگہ موجود ہے, چاہے ہیرا منڈی ہو, چاہے کسائی گلی ہو, چاہے وہ E7 ہو, چاہے وہ آپ کی پارلیمنٹ ہو. تو مجھے تو اس دن کے بعد ایک اپنے آپ میں خاص اعتماد محسوس ہوا ہے. حال یا گائکی موسیقی جسے کہتے ہیں اس کا کوئی تعلق شکل سے نہیں ہے, نہ سریلی آواز سے ہے, نہ اچھی شاعری سے ہے. اس کا تعلق یا علم کی حد ختم ہوتی ہے, اس سے آگے اس کی منزل چیز ہے. جب تک گانے والا اپنی ذات میں ڈوب نہیں جائے گا, اپنے آپ کو نہیں سنائے گا, اپنے من کو راضی نہیں رکھے گا, بات نہیں بنے. اس سے یہ غرض کوئی نہ اس کے سامنے کچھ مشن ہو, کچھ ٹارگٹ ہو, کسی کو دیکھ رہا ہو, کچھ روبری ہو, اس کو سنا. لوگ جو مرضی سوچتے ہیں کہ مرضی کرتے پھرے, اسے اس کی خبر نہ ہو. پھر اندر دامادیز درد سے ہوتی ہے. دامادیز وہ ہے جس کے لیے آج ہاتھ کے مریضوں کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کام آتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں. السلام علیکم نگہت جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے, میں نے بابا جی کا نام لیا اور آپ نے فوراً سے کہا کہ ہم ملتے ہیں نا اور بابا جی کی باتیں کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا کہ بابا جی کی کاکی ہوتے ہوئے میں بات نہ کروں یا ان کی کوئی بات نہ کریں یا کوئی شعر نہ کروں سر آنکھوں پہ. بابا جی سے کیسے ملی؟ بابا جی کی میری ملاقات بڑی امیزنگ سی ملاقات تھی, کیونکہ میں نا ایک کچھ میری زندگی میں کچھ چل رہا تھا. آئی واز گوئنگ تھرو, بہت زیادہ دکھ سے گزر رہی تھی, یا دکھ اس چیز کی نہیں, ان نون کی, کہ بھائی کچھ چیزیں میرے ساتھ ہو رہی تھیں. تو نیرہ نور نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے بیٹی بنایا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں نا ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں تو وہ ملنا چاہتے ہو, تمہارا نام لے رہے. میں نے کہا کہ میرا نام کیسے لے رہے؟ تو کہہ رہی پہلے تو میں نے کھیلا کہ وہ پوچھ رہے کاکی ہے اور رقص کرتی ہے, وہ اللہ سے بہت باتیں کرتی. تو انہوں نے کہا ناہید صدیقی, شیما مطلب اور نام لیتی رہی نا. تو کرتے کرتے پھر انہوں نے جب کہہ رہے تھے جس کا نام لینا وہ تو لے نہیں رہی, بتائیں وہ کاکی کدھر ہے. تو انہوں نے کہا بھی فون کرتے. تو پھر اسی طرح پھر بابا جی نے کہا, بابا جی کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے. تو بابا جان نے ایسے کیا کہ وہ گاڑی میں آ گئے, کوئی ان کو لے کے آئے, ایڈریس دیا کہ پہنچ گئے. ان کے پاس بہت سارے لوگ تھے, مہرین لائی بھی تھی اس دن مجھے یاد ہے, اور بھی کچھ لوگ تھے. تو جب جیسے وہ میرے دروازے پہ آئے تو گھنٹی بجی. تو میں نے پورا چھوٹا سا فلیٹ تھا میرا اور نیچے سیڑھی جاتی تھی, میں 2nd فلور پہ تھی. تو میں نے دیکھا لوگ ہی لوگ, تو اللہ اچھا. تو اب فوراً میرے خیال تھا کہ میں ان کو چائے پلاؤں, کچھ چیزیں منگاؤں, وہ ایک ہوتا نا مہمانداری. تو بابا جان اندر نہیں آئے, رکے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ رب چاہیے, 1 روپے وچ رب وکدا پیا چاہیے. اینڈ آئی ایم لائک اسٹینڈنگ اینڈ تھنکنگ, لوکنگ ایٹ ہم, بڑا سستا مول وک رہے ہیں. تو میں نے کہا ہاں رب بھی تو چاہیے. اینڈ ہی ٹرن اراؤنڈ, ہی سیڈ ٹو ایوریون جاؤ. ہی سینٹ ایوریون. بس کاکی اور ہم, بس. کیونکہ باقی دنیا, گاڑی, عہدہ, یہ وقت لگا مجھے سمجھنے میں. پھر سرکار نے کہا پھر کھولو اپنا دل کا دروازہ, ہم آ رہے ہیں. پھر اندر آئے سرکار. پھر انہوں نے, میں نے اب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کہاں بٹھاؤ. تو ہی کائنڈ آف گریویٹیٹڈ انٹو مائی, میرا لاؤنج ایک تخت سا لگا ہوا تھا وہاں پہ, اور گول تکیے ہوئے سارے, اور ایک میرے وہ ٹی وی روم تھا میرا. تو بابا جان مان لا کے لیٹ گئے. اب ہم نیچے لیٹ گئے, دری بھی تھوڑی سی تھی,
क्योंकि अकेली मुलाजिम को भी भेज दी, सबको भेज दिया बाबा जी ने, मतलब कि मैंने उन्होंने कहा सबको, बट मेरे अंदर ये भी था नहीं कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, आई जस्ट फेल्ट, क्योंकि वाइब्रेशन ऐसी थी, लविंग, उनकी आंखों में इतना प्यार था। और फिर उन्होंने कहा अच्छा तो तुम जब करती हो डांस या रक्स करती हो तो किसका तसव्वुर करती हो तुम? तो मुझे ना जवाब देने नहीं आया कि, मैंने कहा बस ऐसे कोई जैसे कोई नूर, कोई लाइट, कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है, जैसे ऐसे कोई मेरे साथ है, मैं रक्स करती हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे लगता है मेरा कोई साथ है। तो अच्छा कहता है देखना, मिलना है? मैंने कहा हाँ मिलना है। मैं कहा जाओ अपने घुंघरू लेके आओ। तो मेरे घुंघरू दूसरे रूम में एक हॉल था जहाँ मैं प्रैक्टिस करती थी, वो बहुत सारे घुंघरू रखे हुए थे, मगर एक थे जो जैसे कि एक नई जोड़ी थी, फिर साथ एक ऐसा जोड़ी मैंने रखी हुई थी जिसमें मेरा खून भी लगा हुआ था, मेरे पैर भी कटे उसमें, वो पुरानी जोड़ी थी। अच्छा अब मैं दूसरी वाली जोड़ी उठाने लगी थी जो नया वाला सा था, अंदर से आवाज़ आती नहीं 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 नहीं, एकदम से वो लेके आओ जिसमें तेरा इश्क बोलता है, जिसमें तेरा खून लगा हुआ। तो मैं तो एकदम से ना मेरा हाथ कांपने शुरू हो गए, मैं घुंघरू उठाया, सीने से लगा, अंदर ले गया। तो बस बाबा जान को देखने वाले थे, उनके दो तो लेटे हुए थे, आसा रखा हुआ लेटे हुए थे, ऐसे अपने मस्ती में थे, वो मस्ती में थे। तो एकदम उठ गए, तो घुंघरू लिए तो फिर लेट गए, फिर सीने पे घुंघरू रख लिया। मैं तो जो मेरे आंसू बहना शुरू हो गए। फिर उन्होंने कभी हार, कभी ऐसे कर रहे, कभी घुंघरू को चूम रहे, और क्योंकि मेरे घुंघरू हमेशा बुरा कहा गया, तो नाचने वाली है, ये तो ये है, ये तो वो है, मतलब कोई हमारे जो घर के ऐसे बुज़ुर्ग भी थे जो हम जिनसे मेरे घर वाले बैठ थे या कुछ, क्या लड़की किस काम में लग गई। फिर किसी से मेरे को रिश्ते की बात हो रही थी, वो आ गए रिश्ता देखने, उन्होंने कहा कि फ़न चुना तो कौन सा चुना, मतलब ये रक्स करने वाला कोई काम हो। इधर बाबा जी मेरे घुंघरू को चूम रहे हैं, हाथों में लिए ऐसे कर रहे हो, बस ऐसे सूंघ रहे हो। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। और वो जो मेरे अंदर जो चला ना, जैसे कि उफ, जैसे कोई क्लेंजिंग कुछ हुआ, कुछ वाइब्रेशन, मतलब कुछ उनकी तरफ से। तो जब फिर पकड़ के हाथ में कह रहे थे इसमें तुम तो बाबा बुल्ले शाह की तो सुन्नत अदा करती हो, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़े हुए थे, तो लोग तुम्हें बहुत कुछ कहते हैं ना, आए तुम्हें मिलना है ना, तो चलो बांधो, चलो काकी बांधो। तो मैंने घुंघरू बांधना शुरू किया और मेरे आंसू जा रहे हैं, मतलब कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे। मैं घुंघरू बांधती हूँ और फिर सरकार ने कहा कि आंखें बंद करो और ऐसे तस्वीर करो जैसे सस्सी पुन्नों के पीछे तत्ती रेत में भाग रही है, तो पैर कैसे जाएंगे, और रेत ज़मीन भी जैसे गर्म है, तो कैसे पैर रखोगी। क्योंकि धमाल का जो वो समझा रहे थे ना मुझे, क्योंकि कथक में हम नीचे पैर रखते हैं, बात थी गैप के अंदर, बात इसके अंदर थी, बात इसकी नहीं थी, बात वो गायब की जगह, बातिन की जगह, ये जाहिर है ना। तो ये बातिन, तो जब वो समझा, ये बात में मुझे, मैं सिर्फ इसलिए मैं आपको समझा क्योंकि मुझे ये बातें मुझे बाद में समझ आई, उस वक्त मुझे नहीं समझ आया। बाकी वो कहते तत्ती रेत, जब रेत गर्म हो तो जाहिर आप यूँ पैर रखेंगे ना ऐसे, तो उन्होंने ऐसे करना तुमने, जैसे गर्म रेत है, और आंखें बंद करके बस जब तक हम ना कहें आंखें नहीं खोलनी, और दिन में कहना दम मस्त कलंदर मस्त, कल्ब से कहना, मुंह से नहीं, ज़ुबान से नहीं, गले से नहीं, आंखें बंद, जब तक हम नहीं, बस जो हम अंदर गए। वैसे भी डांस में यकसू तो थी हमारी, फिर जो हम अंदर गए, मुझे नहीं पता हम कहाँ गए, कितने टाइम अंदर थी, मगर मुझे ये महसूस हो कि ज़मीन गर्म हो गया और मैं रेत में थी। और फिर उसके बाद सरकार ने जिन जिन हस्तियों से मुलाकात करवाई और साथ थे मेरे, और
लाइट, मुझे बस इतना नूर था। और फिर हम जैसे परवाज़ कर रहे हैं, जैसे आई कुड सी माई सेल्फ फ्लाइंग, आई वाज एक्चुअली अप। और वो सारा, कभी काबे पे जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ, कभी इतनी बड़ी हस्तियाँ, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, मगर जिन से उन मेरी क्या औकात होगी जो उन्होंने दिखाई। मगर ये है कि उन्होंने, और साथ साथ थे एक एक मुलाकात में, जहाँ जहाँ, और शायद वो चाहत भी थी कहीं अंदर, बिकॉज बचपन से ना, जब मैं निकली ना, तो काफ़ी टाइम मुझे लगा निकलने में। जब निकले तो लगा जैसे कि हमसे 10 मिनट अंदर थे, 15 मिनट अंदर थे, मुझे लगा पता नहीं कितने सालों से अंदर घूम रही थी। मतलब ये कैफियत थी। और मुझे, मेरा जिस्म इतना गर्म हो, मुझे लगा जैसे बुखार चढ़ गया मुझे। तो मैं बार बार कही, बाबा जी मुझे बुखार चढ़ गया, मुझे नहीं कोई बुखार नहीं चढ़ा, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। फिर उसके बाद मैंने उनको कहा कि जब मैं छोटी थी ना, मुझे ईसा पाक नज़र आते थे खुली आँख से, क्योंकि लंदन में पली बड़ी थी ना। उनको ये भी कि मैं अंग्रेज़ का की क्योंकि मुझे वो जीन्स पहनना, वेस्टर्न कपड़े, कभी उन्होंने मेरे कपड़ों में तनकीद नहीं किया, कभी मुझे ये नहीं कहा कि दुपट्टा लो, ये करो, सर पे मैं दुपट्टा ही नहीं लेती। फिर वो खुद ब खुद चीज़ें हुई। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, जैसे एक माँ बाप डांट के कहते ना, अपने कपड़े सही करो, मेरे साथ जाना तो चादर लो, ऐसे कभी नहीं सरकार ने, कभी नहीं। मतलब क्या यूँ ये इसको जो पहना वो ठीक है, वो खुद ब खुद अंदर हुआ कि नहीं हम, क्योंकि उसके बाद गश्त शुरू हो गया। मतलब ये समझ लो कि सरकार आगे आ गया, हम पीछे पीछे, ये सब स्टार्ट हुआ। फिर वो जो सारी फिर मेरी जो बातें थी कि मुझे याद है कि बस वो 97 का दिन था, वो गर्मियों के दिन थे, जून जुलाई, और बस वो दिन से लेके अब तक वो मुझसे अलग नहीं हुए, मेरे साथ ही है। फिज़िकली नहीं है मगर है। ऐसा नहीं है कि उनको फिज़िकली होने की ज़रूरत थी, क्योंकि जब पर्दा भी कर गए थे मैं यहाँ नहीं थी, मगर मुझे पता चला कि मुझे सरकार ने भेज दिया। मैं काम नहीं करती थी क्योंकि मैं उनके साथ रहना चाहती थी हर वक्त, बस बाबा जान कराची। और मैं कराची में होती थी तो वो भुरबन में फ़र्ज़ करे हैं, तो फ़ोन आता था, काकी तू आ रही है? मैंने कहा कि सरकार क्या मतलब, नहीं बस तैयारी करो। तो पता चले 2 दिन के बाद फ़ोन आ गया कि एक शो है पीसी भुरबन में, आपने परफॉर्म करना। अली हज़रत भी जा रहे, हम सब जा रहे थे, और बाबा जी वहीं। और फिर कभी कहना कि हम, वो कराची में, मैं लाहौर में हूँ, तो अब वहाँ फंक्शन कर रही सब कुछ, तो मैंने कहा बाबा जी मैं नहीं आ सकती, वो शो चल रहा। नहीं कल तो तू तो कराची होगी। तो वो फ़ोन आता कि वो ये शो आगे चला गया, एक और शो जो कराची में करके फिर वापस आना। फिर क्या हुआ, कराची का शो किया बाबा जानी के साथ, फिर वापस आ गया लाहौर, फिर वो शो किए तो रुक गए। तो ऐसे उन्होंने हमारा, मुझे लगता कि मेरा कोई, वो सब जानते थे, वो मालिक थे, वो जुड़े हुए थे, यकसू में रहते थे हर वक्त। वो तो कलंदर हैं, वो जो भी कहे मुँह से तो वही होना है, क्योंकि कलंदर का मतलब भी कुल अंदर। जब कुल अंदर ही हैं तो वो सब कुछ ही जानते हैं, ठीक है ना, वो कनेक्टेड थे हर बात से। तो वो करवा भी रहे थे कि मेरा रिस्क का सिलसिला रहे, वो ना टूटे। ना उन्होंने मुझे, ना मेरे रक्स को बुरा कहा, ना उन्होंने मुझे कहा कि इसको छोड़ना, ना उन्होंने मुझे कहा कि तुम नमाज़ें पढ़ो, ये करो, वो करो। उनका जो तरीक़ाकार था वो बहुत मुश्किल था एक आम बंदे को समझने के लिए। और बहुत सारे लोग जो आम, मेरे फ्रेंड्स भी थे जो कभी बाबा जान से मैं मिलवाती थी, तो उनको लगता था कि मैं पागल हूँ, कि और कभी लड़ाइयाँ भी हो जाती थी कि लो ये तो नमाज छुड़वा देते, तो हर चीज़ छुड़वा देते, रोज़ा छुड़वा देते, ये कर देते, वो, तो ये क्या तरीका। मैंने कहा आपकी समझ से बाहर। मैंने कि वो नमाज जिसमें आप कायम नहीं होते, वो आपको कायम सिखाते, कायम कैसे होना, तो फिर जाके सलात करो ना, नमाज पढ़ने का तो हुक्म है ही नहीं, सलात कायम करने का हुक्म है। तो फिर वो अगर आपको कायम कर रहे, तो फिर अब जाके नमाज कायम करके करें, तो फिर आपको पता चले यकसू क्या होती है। नहीं तो आपका क्या कनेक्शन हो रहा है, नमाज का मतलब भी कनेक्शन है।
तो आई थिंक मैं कोशिश करती थी, जो भी अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही होती थी कि ऐसे बोल रहा है ऐसे बोल रहा है, मुझे लगता है सरकार को आते थे, मगर बहुत सारी दुआओं का सिलसिला स्टार्ट हुआ और बाबा जान ने मुझे हर जगह लेके जाना और मैं दुपट्टे नहीं लेती थी और बहुत सारी महफिलों में औरतों ने इतराज़ करना, इन्होंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ, तो बाबा जान को कभी गुस्सा, जलाली भी बहुत थे, तो जलाल जब आता था मैं पीछे छुप जाती थी कि मेरे सामने कुछ ना हो, मैं डरती थी। तो उन्होंने कहा अरे तेरे दुपट्टे में अल्लाह, कहाँ तेरे दुपट्टे में, तेरा दुपट्टा अल्लाह से जुड़ा हुआ, तेरा कल्ब होना चाहिए अल्लाह के साथ, तो उसका दुपट्टा देखे फिर तुम्हारी दुआएं कैसे पूरी हो रही? अगर वो गुनहगार है तो गुनहगार बैठ के दुआ करा रहा है, हमारी काकी है ना तो कुआरी, तो तेरी दुआ कैसे पूरी हो रही है? या जिसकी जो दुआ पूरी हो रही, कोई तो बात होगी जो कनेक्ट हो रहा, वो बर्तन होते हैं हम या जो भी होते हैं, जो भी तरीकाकार होते हैं, तो वो ड्यूटी पे है, जिसको दुपट्टे को ना देखें, आप अपना काम को देखें, आप जिस चीज़ के लिए हैं वो करें ना, आप रुजू करें अपने आप। बात ये पूरे माशरे ने किसी के दुपट्टे में, किसी के कमीज़ में, किसी की मेकअप पे, किसी के बाल पे, किसी के जूते पे, किसी की बातों में, खाने, इसी पे उलझ गए, इसलिए तो बीमार है माशरा। जिस दिन माशरा ने अपने आप से इसे हटा दिया तो रूह बीमार ही नहीं होगा। इन्हीं चीज़ों से तो ज़ाहिरी चीज़ों पे फंस गए और जो नूर की बात है, जो रूह की बात है, उस पर कोई आता नहीं है, तो इसलिए बीमार है, ये माशरा बीमार है। मुझे समझ आया, गरीब भी बहुत आते थे, पैसे नहीं होते थे, तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि ज़ाहिर मैं एक और क्लास में पली बड़ी थी, तो कॉन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन मुश्किल था मेरे लिए। तो बाबा जान ने फिर मीडिएट करना, दुआ कराओ कैसे, मुझे उर्दू भी नहीं इतनी आती है, कहते बस कराओ, मतलब ट्रेन कर रहे थे ना मुझे कि हर किसी के साथ बैठना उठना। फिर मेरे कपड़े बदलना शुरू हो गए, क्योंकि हम गलियों में जाने शुरू हो गए, महल्लों में जाने शुरू हो गए, मतलब कि और मैं अनकंफर्टेबल फील करती थी, क्योंकि बंदे देखते थे ना मुझे, तो मुझे अजीब सा लगता था कि नहीं मैंने जीन्स पहने हुए, मेरा कुर्ते लंबे हो गए, फिर लंबे हो गए, फिर करते करते फिर वो, मतलब द होल थिंग हैपेंड इटसेल्फ। तो फिर वहाँ भी दुआ करानी, फिर ये कि सीडी सूरह रहमान का सीडी देना, या सरकार ने जिस तरह से उनको समझाना है, फिर दुआ भी कराना और फिर राब्ता रखने को कहना। और उस वक्त आपको पता नए नए मोबाइल शुरू हुए हुए थे, तो उस पर लोगों ने राब्ते करने, या लैंड फ़ोन पे राब्ते करने, या एड्रेस लिखवाना, डिफरेंट सिलसिला था ना, तो लोगों ने पहुंच जाना। फिर महफिलें होनी थी जहाँ पे दुआ होती थी। हर इतवार को बाबा जानी के घर ना लोग इकट्ठे होते थे, लंगर पकता था, सब लोग, हम जितने काकी काकियाँ होते थे वो आते थे, सब इकट्ठे होते थे। कोई इधर, जब कराची आते थे तो कभी मेरे घर में इतना बैठक नहीं होता था जितना, क्योंकि मैं अकेली होती थी। नैरा आपा के घर में होना, फिर नबिया, आप लोग पता नहीं नबिया से मिले हैं, वो कराची में, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा उठना बैठना था। और मेरे ख्याल क्योंकि उनका किचन एक्टिव था, और मैंने देखा कि फूड का ताल्लुक इससे कितना था कि लोगों ने आना, अपने खाना पिलाना, मेहमानदारी करना, तो वो बहुत अनकंडीशनल वो लोग करते थे। और मेरा ये था कि मैं हर वक्त में, हम सो भी जाते थे वहीं पे रातों को, वहाँ सरकार के साथ सारी सारी रात लोग आ रहे, दुआएं हो रहे, कभी नबिया करवा रही, कभी मैं करवा रही हूँ, कभी उनकी बहन करवा रही, कभी उनकी वालदा करवा रही, कभी नई रापा के घर। अब दुआ का तरीका एक तो है कि आपने आंखें बंद की, और बाबा जान ने हमें कहना आंखें बंद करके आप भी अंदर अंदर 3 दफ़ा ला कह के जो आपकी दुआ आप कहें, और जब तक हमारी काकी ना के आंखें नहीं खोलनी, तो चलो काकी बताएगी तरीका ये दुआ। ये भी होता था। फिर ऐसी भी होती थी महफिलें जहाँ बाबा जान ने मुझे कहना कि धमाल डालने हैं, तो मेरी काकी के पैर पे ध्यान देना, या मतलब पहले आप रुजू उधर हो, या उन्होंने कि आंखें बंद करे तुम करो अपना। अब उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम धमाल डालो, क्योंकि मैं कथक सीखती हूँ, क्लासिकल कथक मेरा शोबा था, वो मेरा फ़न था, तो उसके थ्रू, क्योंकि वो देखते थे कि जब मैं परफॉर्म करती थी ना, मैं किसी डिज़ोल्व हो जाती थी, वैसे भी डिज़ोल्व हो जाती थी। तो वो वर्ड से कनेक्शन नहीं था, मेरा रक्स की एनर्जी से कनेक्शन था।
तो वो मुझे ये नहीं कहते थे कि ये कहो या वो कहो, कि जिस चीज़ पे तुम्हारा जो रूट है, क्योंकि वो वाइब्रेट, वो रेडिएशन होगी, वो रेडिएशन हमने लेके जाना। तो वो सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो परफॉर्मेंसेस में शुरू हो गए कि मैंने करना हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। फिर मैंने कभी करना कि एक था कोई ऐसी कोई अल्लाह के कलाम के ऊपर, या कोई या अली का एक है जो शफ़क़त अमानत अली ने, या मैंने वो करना था हीर रांझे पे कभी कोई चीज़ करनी, इश्क की कोई चीज़ करनी है, कुछ मैं चुनती थी वो चीज़ें, और जिसमें यकसू हो जाती थी। तो सरकार ने कहना कि ये करो, ये लगाओ। तो परफॉर्मेंस पे ख़ास करके, या बाबा बुल्ले शाह को कोई कलाम एक नुक्ते विच गल मुकदी है, या शाह हुसैन का कोई मायनी मैं किन्नू आखां, आई यूज्ड टू परफॉर्म टू दीज कलाम्स। वो सिलसिला मेरा शुरू हो गया स्टेज पे। तो मैं रेडिएट कर रही थी। फिर जब, और बहुत सारी परफॉर्मेंसेस में बाबा जान सामने होते थे, मेरी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस में बाबा जान साथ होते थे। तो बुलबुल में जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में है, मुल्तान में है, बाबा जान साथ होते थे सामने। उनको पता होता था कि काकी की परफॉर्मेंस चले, काम करना। तो फिर जब परफॉर्मेंस ख़त्म होती तो कितने सारे लोग पीछे आते थे। और फिर मैं स्टेज पे अनाउंस भी करती थी कि मेरे मुर्शद हैं, मैं उनसे इजाज़त लेकर शुरू कर रही हूँ। और फिर एक रुजू भी कर रही थी, क्योंकि रूहानियत की तरफ ना, कि उनको भी पता चले कि अच्छा एक सिलसिला है। बहुत सारे लोग, अगर 100 में से एक को भी जाके लगी है और बीज चला गया तो फिर काम हो गया ना। सरकार तो यही कहते थे। तो लोग पीछे मिलने आते थे। तो बाबा जान भी होते थे, समीना पीरजादा, बुशरा अंसारी, सारे लोग होते थे। तो बाबा जी की मुलाकातें सबसे होती थी। फिर वो दुआएं होती थी। फिर वो उनके घर के, ये नहीं मैं कहती हूँ कि सब उसमें आ गए थे, मगर काफ़ी लोग स्टार्टेड, जितना उनका रोल था उस वक्त के लिए, या उन्होंने जितना लेना था, क्योंकि हर कोई नहीं आता इसमें, इट्स नॉट इजी टू फॉलो। तो मगर ये था कि बाबा जान के सबसे, क्योंकि मैंने देखे वो हर वक्त ड्यूटी पे थे। ऐसा नहीं था कि अच्छा 9 से 5 का जॉब है मेरा, तो मैं अब 6 बजे के बाद अपने बीवी बच्चों के साथ, ऐसा नहीं था उनका। उनके घर में भी हैं, गश्त भी कर रहे, हम वॉक भी कितना करते थे, क्योंकि लाहौर में दादा साहब जाना है, वहाँ बाबा बुल्ले शाह जाना। मुझे याद है कि अब मेरा ना उनके साथ बहुत ज़्यादा मर्ज रहना, हर वक्त साथ, कि बाबा जान के घर में रहना, घर ही नहीं जाती थी मैं। फिर मेरे मुलाजिम होते थे घर में, उनकी तनख्वाहें पहुंचती थी तो उनको दे के आती थी हर वक्त। और वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब बाबा जी का बाहर है, बाबा जी का बाहर है, बाबा जान का बाहर है, हम भी मिलेंगे। मेरे ड्राइवर्स, वो हिंदू था, वो मासी मेरी क्रिश्चियन थी, तो वो सारे भी बाबा जी को फॉलो करते थे। क्योंकि वो कभी ये नहीं कहते अपने यस्सु को याद कर, 3 दफ़े यस्सु का नाम ले आंखें बंद कर, 3 दफ़े कृष्णा का नाम लो आंखें बंद कर, क्योंकि सबको कनेक्शंस मिल रहे थे। तो ऐसा भी नहीं था कि वो सिर्फ जिससे आपका कनेक्शन या आपका एक डीएनए बचपन से, या जिससे आप पले, उसी से आपका ज़्यादा वो, ये भी मुझे समझ में आया कि आपने किसी से हटाना नहीं, इसलिए उन्होंने रक़्स से नहीं हटाया, बिकॉज दैट वाज द टूल एंड द व्हीकल जिसके थ्रू ये चल रहा था। तो ये भी मुझे टाइम लगा समझने में, मगर समझ आ गई थी। फिर ये हुआ कि बहुत सारी ना आपकी इंफॉर्मेशन, योर सोल, you're connected to the soul। फिर मुझे समझ आना शुरू कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, और वो हर वक्त 60,000 थॉट्स आपकी चल रही होती है एक दिन में। मतलब साइंटिफिकली भी चीज़ों को पढ़नी मैंने शुरू की। मुझे याद है एक दफ़े में हम बाबा बुल्ले शाह गए और मुझे धमाल डालनी थी, और इंतज़ामियों ने कहा नहीं डालना। तो मैं बहुत अपसेट हो गई। तो सरकार ने कहा जलाल में आगे बाबा जान, कैसे हो सकता है मेरी काकी यहाँ आके धमाल ही ना डाले, बांधो घुंघरू। मैंने बांध ली। तो मैंने कहा कहीं हमें बंद ना करें जेल में या कुछ। चलो बाबा जान ने कह दी तो बांध दिया। तो मैंने बस, सरकार ने कहा आंखें में शुरू करो। तो बिल्कुल आपको पता है बीबियाँ नहीं जा सकती अंदर ना बाबा बुल्ले शाह के दरबार में। तो मैंने बाहर सहन में करना शुरू किया। ढोल वाला आ गया, मुझे आवाज़ आ, ढोल वाला पता नहीं कहाँ से आ गया, आंखें बंद तो मुझे ढोल। तो उसके साथ अब मैं कनेक्ट हुआ, मैं बहुत ज़्यादा चली गई।
جلال میں بھی تھی نا کہ مجھے کیوں کہا کہ نہیں کر سکتی. تو مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں چلی گئی. پھر مجھے اتنا پتا کہ بابا جان مجھے واپس لانے کی کوشش کر, میں واپس نہیں آ رہی ہوں. تو انہوں نے پانی پھینکا میرے اوپر اور میرے وہ ایسے کر کے نا واپس لانا, لے آؤ آ جاؤ کاکی, دنیا نہیں چھوڑنا, واپس آؤ واپس. تو میں واپس آئی تو میں بالکل ٹون تھی, میں تو اتنی مستی میں تھی. تو میں نے کہا اب میں نے بابا بولے شاہ سے ملنا, میں نے اندر جانا ہے. تو کاکی نہیں جا سکتی اندر, میں نے جانا ہے. تو میں نے کہا کیوں نہیں جا سکتی ہے؟ تو میں نے کہا پھر ان کو باہر آنا پڑے گا. میں اس میں چلی گئی کہ مجھے نہیں پتا. تو میں بیٹھ گئی ان کی نا دروازے کے سامنے, میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی کہ مجھے نہیں پتا, مجھے تو ملنا. اور وہ آ گئے سامنے. تو بابا جی اندر چلے گئے سب کاکوں کے ساتھ, میں باہر بیٹھی. تو مجھے کہتے بابا بولے صاحب تو باہر تھے, کاکی کے پاس وہ تھے, اور ہم اندر کس کو ملنے گئے, تو باہر بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے کہا سرکار بالکل میرے پاس ہی تھے. He was there. I was talking to him and interacting and everything. میں بہت ناراض تھی کہ مجھے کیوں نہیں, ہم عورتیں کیوں نہیں اندر جا سکتی. خیر اس کا جواب نہیں دیا, but I was just so happy that he was there. ایسے دیدار ہوا. اور مجھے لگا کیونکہ میں دمال ڈالتی ہوں اور ان کا بھی سارا وہ تعلق تھا, تو I didn't want to come out. میں بس وہیں رہنا چاہتی تھی, میں نکلنا نہیں چاہتی. پھر سرکار جب باہر آئی تو ان کی آواز سے نا میری آنکھ مطلب میں نکل آئی. تو ہم گاڑی میں بیٹھے تھے, ہمارے ساتھ نا ایک سلمان کو آپ لوگ جانتے ہوں گے جو ایئر فورس میں ہوتے تھے, نام سنا ہے. ہاں جی, وہ ساتھ ہوتے تھے ہمارے. ان کا بخار نہیں اترتا تھا, وہ ایئر فورس میں تھے, وہ C-130 چلاتے تھے, پائلٹ تھے. تو ان کا بخار ہی نہیں اترتا تھا. اچھا اب واپسی پہ ہم رک گئے بابا جی کے گاؤں, اور بابا جی کے جو فادر تھے وہ بہت جلالی, ان کو میں دادا جی کہتی تھی. تو جب ہم وہاں پہنچے تو بابا جان نے مجھے کہا دمال ڈالنی. میں نے کہا دادا جی نہ مار دے, آپ نے اتنی ہمیں باتیں سنائی ہوئی, کچھ نہیں ہوتا, میں کہوں گا تو تم نے, ہم کہہ رہے نا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. چلے گئے. وہ انہوں نے ہمیں اتنا پیار کیا, انہوں نے خود کہا دکھاؤ گی نہیں. میں حیران تھی. تو وہ سارے گاؤں والے اکٹھے ہوئے. سلمان صاحب نے بھی دمال ڈالی تھی بعد میں, کیونکہ ان کا بخار نہیں اترتا تھا, ان کا کوئی مسئلہ تھا. تو ساتھ ہمارے رہتے تھے. جسٹ میٹ بابا جان, آئی تھنک جسٹ میرے آگے پیچھے وہ ملے ہوئے تھے. تو ہم نے دمال وہاں ڈالی, اور دادا جی سامنے بیٹھے ہیں. اور جو بھی گاؤں والے جو تھے نا, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے. ویسے یہ بھی ہوتا نا, گھر کی مرغی دال برابر. آپ کے مٹی میں سے دودھی تھل سے ایک کلندر نکلے تو پھر وہ سمجھنے میں کچھ ٹائم لگتا نا. تو بابا جان اتنے خوش تھے, اتنے خوش. تو میں نے بار پھر انہوں نے کہا پھر دوبارہ کرے. دادا جی نے کہا پھر دوبارہ. میں نے کیا تھا, ہم دیکھیں گے, لازم ہے, ہم بھی دیکھیں گے. پھر ایک ٹینا ثانی کا تھا, موری ارج سنو دستگیر پیر, ایک تھا جو وہ بہت اس میں میرا ٹکتا تھا. تو وہ بھی دادا جی نے کہا وہ بھی دکھائیں, تو وہ بھی دکھایا. اور بھی کچھ دکھاؤ, میں وہ ڈوبتی جا رہی تھی, کرتی جا رہی تھی. تو بابا جی کا بس کاکی بس, بہت ریڈیٹ کر رہی تھی. اب تو یہ تھا کہ مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا, میں گر رہی تھی, کبھی ادھر گروں. تو پھر انہوں نے مجھے دادا جی نے اپنے کمرے میں لٹا دیا. ان کا ایک بیٹھک تھا, کہتے کاکی کو ادھر لٹاؤ. لیٹ گئی. تو بابا جی مسکرا رہے تھے کہ میں نے کہا آپ نے تو اتنا ڈرایا ہوا تھا کہ سب نے مجھے ڈرایا کہ ہی از ویری اسٹرکٹ, اور وہ بابا جی کو بھی وہ کرتے ہیں, مگر وہ ایسی بات نہیں تھی. تو میں نے کہا نہیں کچھ ہوا ہے آج. اینڈ سلمان سے پھر ہم ایک اور جگہ پہ گئے جو جہاں پہ چراغ جلاتے تھے, ایک سید فیملی, تو علم بھی لگا ہوا تھا. تو ہم لوگوں نے وہاں دمال ڈالی, اور سلمان کو خاص کر کے بابا جی نے کہا, ان کا بخار اتر ہی گیا تھا ویسے تو, ہی بیکیم ہیل ٹوٹلی ہی. ان کا بخار 24 گھنٹے رہتا تھا, اترتا ہی نہیں تھا. اور اس کی وجہ سے وہ پائلٹ کا کام, مطلب وہ جہاز نہیں اڑا سکتے تھے. سو یو نو آل دیز نیومرس ایکسپیرئنسز ہیں جو آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا ونس جو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ. ہاں ایک اور بھی تھا, اب کافی سال گزر گئے, سمجھ لیں نواز شریف کا ٹائم جب آپ لوگوں کو یاد ہے کہ مشرف ٹیک اوور کر گئے تھے, وہ کون سا سن تھا آپ کو یاد ہے؟ میرے ذہن سے نکلا ہوا
ये था 98 98 था 99, हाँ इट वाज 98 99 नहीं था शायद. कुछ ऐसा था ना जब उनका आई थिंक 97 में मिले थे तो 99 के मैं एग्जैक्टली एक्सपीरियंस मैं बताना चाह रही हूँ कि अब मैं कराची से लाहौर आती हूँ और ज़्यादातर बाबा जी के साथ हूँ ना. कभी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, कभी प्रेस क्लब में बाबा जान ने कहा कि हमने एक म्यूज़िक थेरेपी के ऊपर बात करनी और डांस थेरेपी और तुमने बोलना. और उसमें एक साहब होते थे जो व्हील चेयर में होते थे, वो भी सैयद जाते थे. और क्या होता था उनका, वो ना इस सिलसिले को समझते थे. तो उनको भी बाबा जान ने दावत दी थी, मुझे दी थी, नई रापा को दी थी. नई रापा नहीं आ सकी, मैं आई थी और बाबा जान भी थे. तो एक सारे वो लोग थे जर्नलिस्ट. अब जर्नलिस्ट को टैकल करना वो आपको पता है इतना आसान है. बाबा जान को गालियाँ दे रहे थे, देवी से क्या बकवास कर रहे, म्यूज़िक थेरेपी होती, ये होती, वो होती. तो मुझे तो बड़ा गुस्सा, मेरा तो जलाल. मेरे साथ मेरे 2 स्टूडेंट्स थे, यस, अर्जुमन रहीम एंड एक और लड़की थी. और अब रफ़ी पीर फेस्टिवल के लिए हम आए थे. तो वो भी ज़रा नए थे, दे डिडंट अंडरस्टैंड कि ये आपा क्या करती हैं ये कौन है ये बुज़ुर्ग, यू नो. दे गॉट उनकी फैमिलीज, अर्जुमन रहीम तो बहुत हाई क्लास फैमिली से थी, बहुत अलीट फैमिली से थी, दूसरी मिडिल क्लास फैमिलीज की थी, वो ज़रा ओपन थी. तो वो लॉजिक आ जाता ना कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, यू नो. ये ना नमाज है ना कुछ है. मुझसे सवाल करती थी. मैंने कहा देखो ये जो कह रहे हैं ना बाबा जी, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को ओपन रखो, क्योंकि जजमेंट में ना जाओ, फिर तुम्हें समझ आएगी. मैं अभी जवाब नहीं दे सकती, ये एक्सपीरियंशियल है, मैं तुम्हें लॉजिक से जवाब नहीं देती. तुम थोड़ा एक्सपीरियंस कर लो, नहीं समझ में आती बाहर आ जाओ बेटा. आप मुझसे कथक सीख रही हो ना, नहीं फॉलो करो बाबा जान को कि नहीं समझ में आ रही. तो खैर एनीवे दे वर देयर एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस. मुझे बिठा दिया और लड़की बच्चों से भी, स्टूडेंट से भी मैंने पूछा कि आप बताएं आप लोग. हाँ इससे होता है थेरेपी. हम लोग देखो ना, हम डिप्रेस होते हैं, हम डांस करते ठीक हो जाते हैं, एनर्जी मूव होता, बॉडी मूव होता, ये होता. तो आपके ब्लड भी मूव होता, आपका 70% पानी है, वो भी एक मेमोरी रखता है. तो वो जो आप उस पानी को बोल रहे होते वो आपको वापस रिपीट कर रहा होता बहुत सारी. फिर आपकी सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड. और ये वो जो जर्नलिस्ट है ना, उनको लगता है हम नहायत बेवकूफ़ लोग हैं, हम पता नहीं क्या बात कर रहे हैं. लेकिन वेस्ट में इस पे इतना कुछ हो चुका है. और बाबा जी कहते मेरी काकी की बात तो सुनो, वो सारी गालियाँ देने शुरू कर दी. और बाबा जी को बहुत, और मुझे कोई मतलब कि मुझे लगता था कि मैं मार सकती थी किसी को, क्योंकि बाबा जी को गालियाँ दे मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था. फिर बाबा जी ने कहा काकी घुंघरू बांध. वहाँ पे स्टेज बना हुआ था. तो उन्होंने कहा तुमने हम देखेंगे पे करना. मैंने म्यूज़िक दे के फिर बाबा जी का हम अभी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं, मेरी काकी करेगी. तो उनका घुंघरू बांधे और वो करें, लगाओ हम देखेंगे. लगा दी. अब थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैं एंगर में थी ना, मैं जलाल में थी, तो स्विच ओवर करने में थोड़ा टाइम लगता ना. तो पहली दफ़ा नहीं कनेक्ट हो रही थी क्योंकि गुस्सा बहुत था. फिर बाबा जी ने दोबारा लगाओ, फिर उन्होंने दोबारा लगाया. फिर मैं, अब मेरा ना जलाल कन्वर्ट हो रहा है. उधर बाबा जी ने मुझे देखा गौर से, जलाल में नहीं रहना, जलाल में नहीं रहना, जलाल में. तो मैं उनको देखी जा रही, जो मैं परफॉर्म करके उन्हीं को देख रही, जो भी मैं कर रही मैं उन्हीं को देख रही, क्योंकि मुझे मिल रहा था, कनेक्शन मिल रहा था. उनको देख के ना मुझे वो, फिर मैंने फिर आंखें बंद कर ली. फिर पता नहीं मैंने अब जो करना शुरू किया. फिर मैंने मतलब कि मैं करती थी खुली आंख से, बट मुझे टाइम लग रहा था उसमें जाने के लिए. सेकंड हम देखेंगे, मैं पता नहीं कहाँ थी. मुझे खून ही खुली आंख से ना, मुझे पूरा करबला का मैदान सामने था, पूरा मुझे नज़र आ रहा, खून ही खून था. मतलब ऐसे नहीं आंखें बंद, आंखें खुली में सामने. और फिर जो मैं उसमें चली गई, फिर मैं बस जा रही. फिर दोबारा सरकार ने कहा दोबारा लगाओ. 5-6 दफ़ा लगवाया बाबा जान ने, लगाओ. और मैं डूबती जा रही. अब वो सारे जो जर्नलिस्ट थे ना,
وہ سڈنلی سب یوں کھڑے تھے. لاسٹ والے میں نا میں نے ذرا یوں دیکھا نا جیسے آپ تو مجھے ایسا لگا جیسے احترام میں نہیں کھڑے, تو بابا جی کے ارد گرد ایسے جیسے احترام میں کھڑے. تو میں تو بے ہوش ہو گئی. تو وہ میری اسٹوڈنٹس رونے لگ گئی, ہاں ہماری آپا کو کیا کیا, ہمارے آپا کو کیا کیا, بابا جان نے کیا کیا, کچھ بابا جان کہ کچھ نہیں ہوا. جلال میں تھے لوگ بھی تھے نا, تو یہ نیگیٹو نہ جائے بات. تو ان کو کہا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ. بابا جی میرے پاس آئے تو میں بالکل اسٹیج سے ایسے گر گئی تھی. تو انہوں نے اور اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا, اور وہ مجھے ایسے, میں بالکل اس میں تھی, مجھے نہیں پتا, مجھے اتنی اچھی طرح سے یاد ہے. میں سرکار کو دیکھ رہی تھی اور پھر میں اس میں جاؤں جیسے بالکل آئی ڈنٹ وانٹ ٹو کم بیک, میں اپنی باڈی میں واپس آنا نہیں چاہ رہی تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد پھر انہیں لٹا دیں کہ وہ پھر وہ جو تھے نا پریس کلب کے جو مین بندہ تھا وہ آیا, کہ چلے آیا آپ کو نا کمرے میں لے کے, کہتے پانی لائیں جلدی, کاکی کو پانی پلاؤ, کاکی پانی پلاؤ. جیسے کہا نے پانی رکھا, پھر مجھے دیا, میں نے پیا, پھر نہ آہستہ کمنگ آ, پھر میں آہستہ آہستہ, اور پورے جرنلسٹ نے پورا جو رویہ تھا نا 180 ڈگری ٹرن تھا. جہاں میرے مجھ کو گالیاں دے رہے تھے ایسے کروں, بابا جی بابا جی بابا جی, مجھے نا ہنسی آنا شروع ہو گئی, یہ ہوا کیا, یہ تو گالیاں دے رہے تھے. تو سرکار 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 نمبر دے دیں, یہ نا اب کہانی الٹ گئی نا ساری. تو میں نے کہا اچھا تھیراپی کام کر گئی, مطلب ان پہ کوئی بیج چلا گیا نا اندر, تو یو ٹرن ہو گیا نا, کوئی روح پہ جا کے بات لگی نا. اچھا جب ہم, اب رات کا وقت ہو چکا تھا اور لڑکیوں کو میں نے چھوڑنا تھا ہوٹل, تو میں نے بابا جان کو, بابا جان کہ تم میرے ساتھ جاؤ گی. تو میں نے پھر بچیوں کو, وہ ایک لڑکا تھا ساتھ, میں نے کہا تم نے خیال رکھنا, پی سی کو ان کو چھوڑا اور سب کچھ. بابا جان کہ بالکل ٹھیک, کوئی مسئلہ ہو ہم آ جائیں گے, میں نے اپنی کاکی کو لے کے جانا. تو بابا جی مجھے اپنے کٹیا میں لے گئے, اپنے گھر لے گئے. تو اب جیسے ہم ان کو چھوڑ کے ہم پارکنگ لاٹ میں تھے نا, تو میں نا اس میں تھی ابھی. تو میں نے بابا جان کو کہا کہ مجھے کھلی آنکھ سے نظر آ رہا کہ I don't know whether I should say this, but I'll say it, کہ نواز شریف کے سامنے نوس نظر آ رہا, جیسے ان کے گلے میں کوئی پھندا ڈالنے والا, مطلب وہ نظر آ رہے, اور ان کے چہرے کے سامنے ایک نوس نظر آ رہا. تو انہوں نے کہا چپ, کسی کو نہیں بتانا, کسی کو نہیں بتانا تم نے یہ دیکھا. میں ایک دم سے میں نے کہا اچھا بابا میں کچھ نہیں, کسی کو نہیں بتانا, مجھے بتانا بس. بیکاز نیکسٹ ڈے دا ہول تھنگ چینجڈ. اگر آپ کو یاد ہے, رات کو ہم بابا جان کے کمرے میں سوئی. اس رات کو بابا جان اکثر نا مجھے دوسرے کمرے میں, چارپائی پہ دوسرے کمرے میں کہتے. اس رات کو بابا جان نے مجھے, میں نے کہا میں ادھر ہی زمین پہ, میں نے کہا ادھر ہی سو جاؤں گی. جب بابا جی کو ایسے کرتے نا, ہم دباتے تھے, کرنٹ بھی چلتا تھا بابا جی کا نا, ہر کوئی ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے. تو میں سو گئی. تو بیچ رات میں بابا جان اٹھ جاتے, کہتے میر مختار آ گئے, میر مختار آ گیا, میر مختار. کہ کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, آئی آلسو گور اپ. تو مجھے نہیں سمجھ آیا, میں نہ اسلامک ہسٹری جانتی ہوں نہ کچھ جانتی ہوں, یا کیا لنک تھا, یا پنجتن پاک کے عاشق تھے وہ, مولا علی سرکار کے وہ تھے جب شہید ہوئے تھے, سارا کربلا کا میدان ہوا تھا سب. تو انہوں نے پھر اپنے, وہ مجھے بعد میں پتہ چلا, اس وقت مجھے کچھ نہیں پتا. اور بابا جی جلال میں تھے, اور یوں, اور صبح صبح لوگوں کا آنا شروع ہو گیا, انہوں نے فون کرنا شروع, سب لوگ. پھر انہوں نے لکھنا, وہ لکھتے تھے, آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں, وہ نا ایک پولیس کے تھانے میں جا کے لکھتے تھے, وہ ان کا کچھ پرچہ جاتا تھا, آئی ڈونٹ نو واٹ دے یوزڈ ٹو کال اٹ, بٹ وہ ایک لکھتے تھے, اور اخبار میں بھی لکھتے تھے. تو انہوں نے بھی لکھا, اور کوئی پوئٹری ٹائپ پروز, کبھی لکھنا کبھی پوئٹری کی فارم میں, جیسے پہیلیاں نہیں ہوتی, جیسے بابا بلے شاہ لکھتے تھے, ایسے لکھتے تھے سرکار. تو ہی روٹ سم تھنگ ٹو دا فیکٹ دیٹ سونی کاکی, جیسے بے نظیر سونی کاکی ہوتی تھی, یا کوئی اس طرح کا ذکر کرتے تھے کہ اب میر مختار ہے, تو دا فیکٹ واز, اگلے دن نا سب کچھ پلٹ گیا تھا. نواز شریف واز اریسٹڈ,
वो सारा उनका प्लेन नहीं लैंड हुआ, वो सारा वो चल रहा था, रात को ही चल रहा था सारा, और अगले दिन ये सारा पलट गया। तो एंड पीपल वर कमिंग, और आपको पता है ये लोग तो फैसलों में होते हैं। ये तो मुझे याद है कि सरकार ने पे कहा कि अब हमने 7 फकीराना मोड़ लानी है, 7 फकीरानी मोड़ लानी। मैंने कहा वो क्या होता? तो अभी हम जाएंगे। अब शहबाज कलंदर पाक के सिलसिले शुरू हो गए, अब धमाल डालने के लिए पहुंच जाना, हमने शहबाज कलंदर कि उर्स पे जाना, अब सरकार के साथ साथ। फिर बाबा जान ने मेरा हाथ पकड़ के गलियों में घुमाना मुझे, और पता नहीं ऐसे ऐसे फ़कीर बैठे होते तो कभी किसी के सामने हमें बिठाना, देख हमारी काकी को। अच्छा वो ना माथे को देखते थे, मैं उनकी आंखों को देख रही हूँ, हमारे माथे को देख, तो मैं बाबा जान को कहती क्या देख रहे हैं, मेरे आंखों में तो देख ही नहीं रहे, तो इधर कहते यहाँ पे ना वो लिखा होता है, लिखा होता है। देखिए क्या लिखा होता है, डेस्टिनी, ये जो भी। तो एक फ़कीर ने कहा कि आपकी काकी के ताज नज़र आ रहा, या आप इसको ताज अपना समझते हैं। मतलब इस तरह की बातें मुझे, मतलब कि आई एम जस्ट सेइंग द वे द थिंग्स वर। उनकी अपनी लैंग्वेज थी जो मुझे नहीं इतनी समझ में आती, मगर क्योंकि मैं इश्क में थी, मैं मेरे मुर्शिद के साथ, मेरे माँ बाप सब वही थे, तो मेरा हाथ नहीं, जो मेरा हाथ पकड़ के इतना रश होता था कि मेरा हाथ सरकार ने ऐसे पकड़ना, अब मुझे नहीं पता कोई किसी का पकड़ा नहीं पकड़ा, मेरा हाथ ऐसे पकड़ के ना कि गुम ना हो जाए हमारी काकी कहीं। छोटी सी थी मैं, थी यंग सी और सहमी हुई सी, क्योंकि माशरे से नहीं, तो मेरा हाथ ऐसे पकड़ना, कई लोगों के हाथ छूटे बाबा जी, कि मेरा हाथ नहीं छूटा कभी भी, पूरे थ्रू आउट द उर्स ऐसे रहते थे। और मतलब दैट फीलिंग आई स्टिल हैव टुडे, मतलब आई नेवर फॉरगेट दैट होल्डिंग, यू नो, लाइक ही वाज होल्डिंग मी। तो ये भी मतलब धमालें होती थी, मतलब बहुत सारे, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ आर्टिस्टों के साथ था, तो बाबा जान को मिलवाना कि हक़ की बात जाए, हक़ की बात जाए, हक़ की, फिर दुआएं करा, लोग बीमार होते थे ना, फिर हम लोगों ने वो सिलसिले, घर में मैंने थोड़ा सिलसिला स्टार्ट करना शुरू किया, फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि इट स्टार्टेड। अब मुझे ये भी याद है कि हम जब सरकार के साथ होते थे, बाबा जान के साथ होते थे ना, तो कई जगहों पे रहना भी होता था, जैसे शाकिर साहब के घर रहना, चौधरी साहब के घर रहना। अब पता नहीं आप इन लोगों को जानते हैं, ये इनकी सारी रात महफिल होती थी, सारी रात चल रहा होता था, और लोग आते थे। और फिर एक और लड़की होती थी, इसका खामन PIA में होते थे, फिर नई रापा के घर होना, मतलब दिस वाज गोइंग ऑन फॉर इयर्स। और हम कभी ये फील नहीं करते थे कि बहुत सारे दोस्त कहते थे यार वक्त ज़ाया करती हैं, बाबे के पीछे लग गई हूँ, उनके अलावा कोई बात ही नहीं करती। मैंने ये नोटिस किया कि जब बाबा जान के साथ होती थी, हमेशा हाल में होती थी, उस वक्त में होती थी मेरी। इट्स अमेजिंग, मैं कभी आगे पीछे अपने सोचों में नहीं होती थी, नहीं होती थी। उनकी सोबत में रह के टाइम का पता नहीं होता था मुझे, कभी कोई पास्ट की बात नहीं फील होती थी, या फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं होती थी। हम उस वक्त हमें ये नहीं पता कि अब सरकार ने कहाँ जाना है, बस चलो काकी चलो उठो, गश्त करना, चले उठे CMH जाना। अब मेरा फर्स्ट केस आ गया जब सरकार से मैं मिली हूँ और सारा कुछ मेरा सिलसिला, तो हमने इस्लामाबाद जाना CMH, ये फर्स्ट केस था जिसमें आप कहे हीलिंग का, वैसे दुआओं का सिलसिला चल रहा था। तो मैंने कहा बाबा जान क्या करूँगी, कि चले बस चलो। मैंने कहा अच्छा बाबा जान चलें। तो चौधरी साहब थे इस्लामाबाद में, उनके कोई थे अगेन पायलट थे, C-130 चलाते थे, उनको शेव कर चुके थे, उनके अगले दिन ऑपरेशन होने वाला था, उनकी ECG में 3 वैल्व्स बंद है, ये सब सामने थे, एंड ही वाज इन द हॉस्पिटल, सुबह ऑपरेशन होना है। तो बाबा जान के चलो, अब हम लाहौर से रवाना हो गए, पहुंच गए भाई 6 बजे शाम को पहुंचे, मुझे यहाँ CMH पहुंचे, रावलपिंडी में है। तो ऊपर लिफ्ट में ऊपर गए, चौधरी साहब ने हमें रिसीव कर लिया, तो अंदर आए तो एक मुझे अभी तक याद, एक सोफ़ा था और एक कुर्सी में सरकार सोफे पे बैठ गए, वो लेटे हुए थे अपने, सारे उनकी ट्यूब्स लगी, और चौधरी साहब भी बैठे हुए थे। अब बाबा जी ने मुझे कहा कि थोड़ी सी उनसे बात कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि घर जाना है, C-130 चलाना। तो मैं भी सोच रही हूँ
अनबिलीवेबल बात है कि अच्छा सुबह के ऑपरेशन वाले EC 130 चलाएंगे, तो थोड़ा वो अक्ल में आप चले जाते ना. Then I just said, oh, I got to let go of this now. मैंने अपने आप को खाली किया. पहले तो बाबा जी ने हम लोगों को बिठाया, आंखें बंद करे, सारे दुआ वो सारा, फिर हम लोग ना CMH पहुँचे. अब बाबा जान ने कहा कि चलो अब पहले उन्होंने कहा कि आंखें बंद के सबको ज़रा सेंटर किया, क्योंकि मुझे भी सेंटर होने की ज़रूरत थी. मगर बहुत खुश थी कि मैं बाबा जहाँ के साथ थी. बस मैं वो कैफियत नहीं बता सकती थी कि मैं कितनी खुश थी मैं उनके साथ हूँ. तो उन्होंने उनको कहा कि C-130 चलाना जाना है, मतलब ठीक हो ना, तो मेरी काकी ठीक कर देगी. एकदम से मैंने कहा बाबा जान कि दुआ कराओ, अब ठीक करो, काकी को ठीक करो. अब 1 मिनट के लिए मैं बाबा जान की तरफ देख रही, तो आई रियलाइज कि ना ये तुम्हारा फर्स्ट केस है, चलो. तो मैंने कहा कैसे करना, क्योंकि पहले तो हम दुआ करके ना आंखें बंद करके, उन्होंने कहा था कि काके का हाथ लो, ऐसे ऐसे काके का हाथ लो, ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे पकड़ा था मैंने, ऐसे पकड़ो, आंखें बंद कर, उनको भी आंखें बंद कराएं, और जैसे दुआ करवाती हूँ ना 3 दफ़ा. फिर बाबा जान ने समझाया सारा, 3 दफ़ा आंख बंद कर, 3 दफ़ा डूब के अल्लाह कल्ब से कहना, 5 दफ़ा अली हाक अली हाक अली हाक. और जब तक हमारी काकी ना गए ना आंखें नहीं खोलना. अब यहाँ पे बाबा जान, यहाँ पे मैं थी, यहाँ पे वो लेटे हुए जो. अब यहाँ पे मैंने आंखें बंद की और बहुत ज़्यादा डूब गए, बहुत ज़्यादा. मैं चाहती थी कि ठीक हो जाए, और वो चाहत भी होती ना. तो मैं बहुत ज़्यादा खाली हो गई कि मुझे वो अंदर उनका दिल नज़र आना शुरू हो गया. इतनी एम्प्टी हो गई नहीं कि कल्ब नज़र आया, वो 3 ट्यूब्स भी नज़र आए जो ब्लॉक थे. फिर मैंने सारा वो किया, अपना माली हक पढ़ रही अपने कल्ब के अंदर, और यकीन माने विदिन 10 मिनट्स तब पप मैंने देखा कि वो सारे ट्यूब्स ऐसे करके खुले. आई सॉ इट विद माई आइज क्लोज. बंद आंखों से मैंने ऐसे कोई नूर लाइट सा गया, और एकदम से मैंने उनका हाथ छोड़ दिया, मतलब कि हो गया ना काम, हाथ छोड़. तो मैंने दवाल डालना शुरू किया. मैं कहा बाबा जान ये तो ठीक हो गए, ये तो ठीक हो, मेरा पहला पेशेंट ठीक हो गया. तो ऐसे बच्ची थी ना, समझ नहीं थी वो, तो अभी तो बहुत मैच्योर हो गई. करता तो मालिक, हाँ शिफा वो देता ना, आप तो चैनल कर रहे होते ना नूर को, क्योंकि उनका नूर से कम होता. तो आप और आपके मास्टर सामने बैठे हुए हैं, तो जितना एक्स्ट्रा नूर आपको मिला. मगर मुझे खुशी थी कि वो ठीक हो गए, क्योंकि मैंने देख लिया. तो बाबा जी यूं ना आशा के साथ ना ऐसे कर रहे थे. मेरी काकी ने दुआ करा ली. तो क्या देखा कि मैंने कहा बाबा जी ठीक है, इनको क्या ऑपरेशन नहीं कराना है, डॉक्टर को बुलाए, इनके टेस्ट करवाएं, इनका ECG करवाएं. तो मैं बस वहाँ हॉस्पिटल के कमरे में दवाई डाल रही थी, अपने वो घूम रही थी और पता नहीं क्या क्या कर रही थी. तो बाबा जी बहुत खुश थे. तो एंड आई केप्ट हगिंग हिम, आई केप्ट गोइंग हिम एंड हगिंग. आई सेड ये ठीक है बाबा जी, ये ठीक है भाई, ECG करवा ले, हम तो जा रहे हैं. अब बाबा जी रुकते नहीं हैं, क्योंकि ना वो वाले हैं कि उनकी पूजा करें या उनके हाथ को और चूमें, और वो ऐसे तो थे नहीं. तो शिफा देने वाले ने शिफा दे दी, अल्लाह पाक शिफा देने वाला. जिसकी किस्मत में है, नसीब में है, वो मिल जाता. बहाना बनता, कोई बुजुर्ग आ जाता, कोई काकी आ जाती, वो खुद को कुछ नहीं होते, वो करता शिफा वो. तो चले गए. अब हम लोग चले गए चौधरी साहब के घर, भूल गए. मगर फिर बाबा जान ने आज काकी ने पहली अपने वो पेशेंट डॉक्टर बन गई. इस तरह करते थे, सरकार कहते, हम सबको डॉक्टर कहते थे. तो मैं बहुत खुश थी. तो कहते चले आज ना सेलिब्रेशन करते ना. अब हम करके लाहौर आए, तो वो पीछे से क्या हुआ, क्योंकि हमें बाद में पता चला, उस बंदे ने ECG करवाया. डॉक्टर्स ने जब किया तो वो 3 ट्यूब ठीक थे. उन्होंने कहा नहीं आपका, इसलिए कि मेरी ऑपरेशन के पहले मेरी ECG करवाई. जब करवाया तो 3 ट्यूब्स खुले हुए थे. तो डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आया कि वो भी ECG दोनों उसके पास थे. तो डॉक्टर्स ने कहा कि दिस इज गॉड्स वर्क, ये तो अल्लाह का काम है
یہ تو شفا وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے تو پھر آپ کپڑے پہنے آپ جائیں. 3 منزلیں اوپر تھے, وہ پیدل نیچے گئے, گاڑی میں بیٹھے گھر گئے, وہ پتہ نہیں کیا کہ ڈرائیو کر کے لاہور آ گئے. اب وہ ہمیں ڈھونڈ رہے, وہ پہنچ گئے. میری کمال کی بات ہے کیونکہ وہاں پہ نا پتہ نہیں کوئی بات ہوئی تھی فیملی کی میری نا, اور میں مشہور تو تھی, لوگ مجھے جانتے تھے, پتہ نہیں انہیں کرتے پی ٹی وی سے ایسے کرتے پھول اور لے کے آئے تھے اور مٹھائی اور سبھی چیزیں لے کے آئے, اور وہ پہنچ گئے تھے میرے خاندانی گھر. چودھری حضری ملز والوں کی بیٹی ہوں میں, مطلب نواسی ہوں, اور وہ بہت میرے نانا کا بہت حضری ملز تھے, اور فیصل آباد, ڈھاکہ, انڈیا, پاکستان, لاہور, تو لوگ جانتے تھے ان کو. اینڈ ہی واز آلسو دا ہیڈ آف دا, تو وہاں پہنچ گئے. اور میری فیملی کا دماغ خراب ہے تیرا, رقص کرنے والی ناچنے والی وہ ہے, بیکاز میری اختلاف چل رہی تھی نا, فیملی نہیں چاہتی کہ میں رقص کروں. تو انہوں نے کہا لو نچ دی ہو دعا کرائیں گی, وہ تو گنگار ہے, تمہیں کوئی غلط فہمی ہو جی, ساری کاکی ساری بچی نہیں ہو سکتی, یو نو دے ور ریئلی شاکڈ کہ یہ کیسے. اور میری ان دنوں میں امی آئی نہیں تھی, اور امی کا میرا چل رہا تھا کہ بابا جی کو چھوڑ دو, بابا جی کو چھوڑ دو, بابا جی یہ تمہیں غلط راہ پہ لے کے جا رہے ہیں, یہ تمہیں چکلا میں بٹھا دیں گے, کیونکہ آستانہ ان کے تو ریڈ لائٹ ایریا میں تھا نا, تو ہم تو وہاں جاتے تھے. ان کی کاکی تھی جو دھمال ڈالتی تھی, اس کے نام میرے ذہن سے کیسے نکل گیا, وہ وہاں جاتے تھے ہم لوگ. تو امی میں کبھی کوئی چیز چھپاتی نہیں تھی, جو تھا وہ جو. That's my phone. Sorry. Let me put it on silent. وہ کیا اس کاکی کا نام تھا, وہ ابھی بھی ہے لاہور میں. How can I go blank on her? Sorry, I'll put it on. آپ لوگ نہیں ملے اس سے؟ نہیں. ذہن سے کیسے کبھی ہوتا ہے نا, بلینک چلے جاتے ہیں. اور بہت خاص کاکی تھی باپی. What's her name? Let it come. Very important because she played a major role with Baba Ji. بابی غزالہ اچھا آ گیا نا. I just said بابا جی بتائیں کیا نام ہے, کیا نام ہے, ٹھیک ہے نا, بیکاز یہ بہت خاص تھی. ٹھیک ہے, میں ادھر سے لیتی ہوں کہ کہاں تک ہوا. آپ نے کہا کہ ریڈ لائٹ ایریا جاتے تھے, تو ماما کو سر میری کہا. اختلاف تھا. تو امی کو یہ تھا کہ اس بابا جی کو چھڑواؤ میری بچی کو, یہ تو ریڈ لائٹ ایریا جاتے ہیں. یہ وہ کہتی ان کا آفس وہاں ہے, استانہ ہے, تو آفس کا کیا مطلب. تو میں نے کہا بابا جان امی وہ بزرگ ہیں, تو بزرگ کنجریاں میں چکی کر رہے ہیں, تو میں نے کہا ان کو دعائیں کراتے. تو کیا مطلب دعائیں کراتے, کہتے دمال کرواتے. تو اب یہ جو بندہ شریعت میں ہے نا, میرا پورا خاندان تو شریعت میں ہے, تو وہ کو کیسے سمجھ آ سکتی کہ وہ دمال ڈالنے سے تو وہ ٹائم پہ بیٹھنا نہیں چاہ رہی ہے. تو میں کھل کے بات کرتی تھی کہ میرا کوئی ڈر نہیں تھا. تو میرے تیرا دماغ خراب ہے, تو بھی بیٹھ جائے گی اتنے, انہوں نے تینوں بھی بٹھا دینا. میں نے کہا نہیں امی ڈونٹ سے دیٹ. تو میرا بہت اختلاف تھا. تو کچھ ٹائم لگا, جس میں ایک دفعہ میں نے بابا جان کو کہا پلیز آپ گھر چلیں میرے ساتھ, بیکاز آپ ہمیشہ چاہتے کہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں نا, کہ آپ کے گھر والے بھی ان سے ہی پیار کریں. تو بابا جی چل پڑے, چلیں چلتے. میں کہ دعا کرانی. ایک دو تھیں خاندان کے اندر, 2 بیویاں تھیں جو سمجھتی تھی اور اولاد نہیں ہو رہی تھی. وہ چاہتے تھے کہ ان کا اولاد ہو جائے. تو میں نے کہا بابا جی کی دعا سے ہوگی, بابا جی کی دعا سے ہوگی. تو لے کے آئی. تو بابا جی بیٹھ گئے. بابا جی نے کہا کہ کروائی کی دعا. میں نے کہا بابا جی ادھر مجھ سے نہ کرانا, کیونکہ فیملی ہے نا, پلیز پلیز. کہتے اچھا ٹھیک ہے ہم کرا لیں. ان کو سمجھ آ گئی تھی, کیونکہ گھر کی مونگی دال برابر, کسی سے نہیں کچھ ہونا. بعد میں کر لوں, مگر کہہ رہی تھی ٹھیک ہے تم جب کاکی کہے گی نا آنکھیں کھولنا پہ کھول لینا. پھر انہوں نے کہ یہ طریقہ ہے اپنے یہ کرنا ہے. سارا فیملی, عورتیں بچے سارے آ کے بیٹھ گئے. میری نانی بھی تھی, میری امی بھی ان دنوں میں تھی, میرے ماموں باہر تھے سارے. بعد میں جب ختم ہو تو انہوں نے چائے وائے پلائے اور یہ دعا کرائے. بڑی زبردست دعا ہوئی تھی. کچھ اس میں سے روئے بھی بہت, بہت کلینزنگ ہوئی. ایک ہماری فیملی فرینڈ تھی, اس کو اولاد نہیں ہوئی 14 سال سے, اس کو بیٹا ہوا, بات کی بات ہے. اور پھر میری جو ممانی تھی
उसकी औलाद नहीं, उसकी औलाद, मतलब उसका बच्चा बेटा पैदा हुआ। तो आप देखिए ना, अब ये सबूत भी थी ना, एक एविडेंस भी ख़ानदान के अंदर मुझे मिला ना कि मैंने देखी। तो वो तो होना था, वो तो अल्लाह का हुक्म था, वो ये था। मैंने कहा मैंने बहस में नहीं जाना। खैर जब हम नीचे उतर रहे थे तो बाबा जान ने मुझे एक बात कही जो अब तक मैंने अपनी अम्मी को उस बात से बचाई। मैंने कहा, बाबा जान ने कहा कि ये ना, ये जो घर है बहुत बड़ी हवेली, 32 रूम्स का, नीचे पूरा वो मशीनें लगी हुई थी, और पुरानी हवेलियाँ नहीं होती जैसे, ऐसे था, और ऊपर फ्लोर्स पे फ्लोर्स थे। तो कुछ आधा फैक्ट्री में किया, क्योंकि हौजरी मिल्स वालों का मेन ऑफिस मेरा नाना का वहाँ था, तो मेरे मामू चला रहे थे। तो बाबा जान देखते ना तो कहती दीवारों में ना खून में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा क्या नज़र आ रहा है? कह रहे इनकी आपस में बनती नहीं है, इस प्रॉपर्टी और ये सारे जो हौजरी मिल्स वालों का ना, ये आपके आपस की जो है ना, इनकी आपस में ना जंग छिड़ जानी, बंटवारे होने और खून होने, खून में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और ये कौड़ियों का दाम बिकेगा। ये कह के ना जलाल में थे, मेरे मामू ने कुछ ऐसी कोई बात किया तो उन्होंने सही हुआ, कोई बहुत गंदी सी बात। खैर मैं भी बहुत जलाल में थी, तो बाबा जान कह के ना अपना आसा ऐसे करके, अब ये मुझे समझ नहीं कि बाबा जी कह के करवा के गए कि ये पहले से नज़र आ रहा था। एक होता है ना मोड़ लगाना, मुझे लगता है मोड़ लगा के चले गए। अच्छा, क्योंकि नज़र तो आ रहा है ना, सब नज़र आता है ना उनको, तो सब कुछ। लेकिन बाबा जी किसी का नुकसान तो नहीं, नुकसान नहीं, मगर ये होगा, हाँ। करवाना नहीं, मोड़ लगा के जाते कि नुकसान की बात नहीं, कि मुझे बता रहे कि ये होगा बेटा, तुम देखना। और जलाल भी था ना उनका, एक जलाल, ये नहीं कि वो, मतलब वो, जब मुझे ये भी समझ में आया, क्योंकि मेरे साथ एक और भी ऐसे किस्सा हुआ जिसमें उन्होंने कहा देखो उन्होंने करवाया था, ये भी बहुत चल रहा था कि बाबा जी ने ये देखो मुंह से निकाल, अगर उनकी निकली हुई बात पूरी होती है तो फिर करवाया उन्होंने। मैंने कहा कि जो होना होता उनको नजर आता, वो बोलते, उस पर अगर वो जलाल में आते तो उससे मोड़ लगा रहे कि ये होगा तुम्हारे साथ, हट जाओ, सीधे हो जाओ, हिदायत है ना। तो जब उन्होंने हंसा यूं किया तो मुझे ये कि मोड़ लग गए कि ये उन्होंने देख लिया, और ये, और उन्होंने कहा हम नहीं होंगे, मैं कहा कि तू देखेगी। और बाकी ऐसा हुआ दैट व्हेन ही पास्ड ओवर, जब वो पर्दा कर गए, उसके बाद हमारे फैमिली में बहुत झगड़ा चला इस घर के। तो मैंने अपनी वालदा से कहा, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, अब मुझे लगता है बाबा जान इसलिए मुझे इन्फॉर्मेशन दे के गए, क्योंकि मेरा तो अब्बू नहीं थे, अब्बू तो हमें बचपन में छोड़ के चले गए थे। तो बाबा जान को पता कि मेरे कुछ चाइल्डहुड के बहुत मसले थे। तो मैंने अम्मी को कहा आप अपना हिस्सा लेके बाहर निकले, यहाँ पे खून होना है, यहाँ पे बहुत चीज़ें होनी हैं, तो आप अपना हिस्सा लेके ना। तो उन्होंने मेरी बात सुन ली, और मैंने कहा आपको एक बात बताऊँ, बाबा जान ये बात हमें कह के गए थे। तो अम्मी ने कहा अच्छा। मैंने कहा उनकी बात कभी गलत नहीं होती, उनको नज़र आता है, तो अम्मी प्लीज़ मेरी मान ले। आप मान गई, उन्होंने घर अपना पैसा लेके निकल गई। बाद में जो हुआ तौबा, उनकी एक एक बात पूरी हुई, मगर मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे आगाही कर दी, एक नॉलेज दे दी कि बेटा तेरी माँ अंदर है, तो वो भी अकेली, उसका भी कोई सरपरस्त नहीं है, तो तू उनको बचा लेना, तेरे हाथ में है कि तू कर सकती। सो लुक कितना पॉजिटिव बात थी। अगर वो मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती शायद मैं नहीं करती, मगर क्योंकि मैं पाकिस्तान में रह रही थी, तो वो कब कहा कब हुआ, यू नो। सो इस तरह की एक दफ़ा कराची में भी एक बंदा मुझे बहुत तंग करता था, तो बाबा जी के पास वो रिश्ता, मैंने कहा मेरा रिश्ता मेरे मुर्शिद से मांगो भाई, मैं तो नहीं करूँगी शादी, वो जैसे कहेंगे वैसे करूँगी, मैं ऐसे थोड़ी करती हूँ, वो मेरा माँ बाप है, जैसे वो कहेंगे मैंने करना। तो वो मेरे घर के सामने आके बैठे होते थे, तो बहुत तंग करते थे, और वो थे नहीं रापा के खामद के दोस्त। तो मैंने बाबा जान को जाके बताया कि तंग शराब पी के ऐसे करते बैठे रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता बाबा जान। कहते अच्छा यहाँ बुलाओ। फिर उन्होंने नहीं रापा के खामद शहरियार भाई को कहा कि बुलाओ उनको, अगर मांगो। फिर मैं नहीं थी, फिर वो बैठे, फिर मुझे बाबा जान ने बुला लिया, आओ। फिर मैं आ गई, तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे कि भाई अगर रिश्ता मांगना तो बोलो, अब दूध का दूध पानी का पानी,
या सिर्फ अकेले में मुझे तंग कर रहे और इधर आके मेरे माँ बाप है, मेरे मुर्शिद है, सब पूछो मांगो तो मांग ही नहीं रहे, बैठे हुए। फिर थोड़ी देर के बाद वो बाबा जान को गालियाँ देना शुरू कर दिया, उन्होंने बुरा भला कहना चाह रहे, तुमने इस लड़की को गलत राह पे चला दिया, तुम ये कर दिया, आपने ये किया, तुम पे आ गए कि ये क्या है, ये क्या तरीका है, वो है। थोड़ी सी मुझे लगता है शराब पी के आए थे, मुझे लगता है। और बाबा जान ही वाज सो, पहले तो काम बहुत है, तो फिर जलाल में आ गए कि तू काकी के साथ ड्रामा करता है, तू काकी के साथ खेल कर रहा है, यू नो, ही जस्ट वेंट इनटू दैट थिंग। और उन्होंने कहा कि जाओ यहाँ से, मुझे शक्ल ना मुझे ना लग, पता जाएगा तुझे कलंदर मिला, कोई फकीर मिला। उसके बाद इसी जो आप करते आपके साथ हो, तो वो वैसे भी गड़बड़ थी ना, तो फिर वो रोड पे आ गए, वो लिटरली रोड पे आ गए। फिर उनका कोई काम नहीं होता था, और जो था भी वो भी छूट गया। फिर कोई 3 साल फिर मेरे घर पहुंचे कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मैंने कहा कि मैंने तो माफ़ कर दिया, हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो सब तुम्हारा किया हुआ, क्या मतलब। मैंने कहा नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, यू आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ योर ओन लाइफ। तो मांगने तो आप हमारे मुर्शिद से मांगे। फिर वो नईर आपा के पैर पकड़ लिए कि बाबा जी के मेरी काकी से मांगो मैं को बाबा जान से मांगे, ये चल रहा था। फिर इन दी एंड माशाल्लाह वही बंदा अब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो बहुत इस राह पे चलते हैं, वो दुआ करते हैं, वो सारा सूरह रहमान से कनेक्टेड है, उनका ओहदा बहुत अच्छा मिला, उनकी ज़िंदगी सारी सेट हो गई, और जो शराब वो ये सारी चीज़ें उनकी छूट गई। तो अब मुझे समझ आए कि देखो ना, जो मसले थे तो वही उसको चला रहे थे ना, वो अपने रूह से कनेक्टेड नहीं थे, वो अपनी हैबिट से या अपनी अकल की चीज़ों से, और जो ज़ाहिरी चीज़ें उसको जज कर रहे होते थे। अब वो माशाल्लाह इतने चेंज हुए और इतने हकूक़ुल इबाद कर रहे हैं, और इतना मतलब हुकूमत में भी रह के ही इज़ एडवाइजिंग ही वॉज, अब तो खैर वो नहीं कर रहे, मगर सही डिसीजंस ले पा रहे थे, वो एडवाइस कर रहे हैं। तो उनकी विजडम डेवलप हुआ, कितनी कोई चीज़ें उनकी जो सफाई हुई ना अंदर की, तो कई बार आपको ज़ीरो पे जाना पड़ता, तो फिर आप हीरो बनते। जब तक ज़ीरो का एक्सपीरियंस ना आए, हम तो कितनी दफ़ा ज़ीरो पे गए, तो फिर ये हीरो होते हैं। और हीरो उस तरह से होते कि अपने रब को साथ रखते हुए हीरो, जब रब को निकाल देते तो कोई हीरो नहीं होते आप। अब जब रब आपके हर चीज़ में है, आपकी सोच में, आपके काम में, आपके करने में, आपके बोलने में, आपके दिल में, आपकी रूह में, तो हर काम रब को रखते हुए कर रहे। पैसा भी कमा रहे तो रिस्क रब से आ रहा ना, आपका लिखा हुआ होता है। तो जब आप ये तो मैंने कमाया, तो रब को निकाल देते ना, तो फिर आप हीरो नहीं बन सकते, फिर आप ज़ीरो पे चले जाते हैं। थिंग इज़ आई फील, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि बाबा जान के साथ रह के, और क्योंकि मैच्योरिटी आ जाती है ना, तो आपका रब ही आपका हीरो होता, और आपका मुर्शिद ही आपका रब होता, क्योंकि वो यहीं पे आपको वो शक्ल दे रहे होते ना, फिज़िकल फॉर्म। अल्लाह पाक ने अपने आप को जिस्म दिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया होता, तो उनके हाथ, आँख, सब कुछ तो डिज़ोल्व हो जाता, फिज़िकल सेल्फ डिज़ोल्व हो जाता ना, तो उनकी आँख, सोच, कहना, करना, उठना, बैठना, पलटना, सोना अल्लाह है। जैसे कुरान में ना हम हाथ बन जाते हैं, हम आँख बन जाते हैं, हम ज़ुबान बन जाते हैं, कुरान की बात है। तो अब सब कुछ तो कुरान में लिखा भी है ना। अब जैसे आजकल मैं कुरान बहुत स्टडी कर रही हूँ, और उसकी वजह यह है कि बहुत सारी बाबा जी की बातें, उनकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते मुझे कुरान से वो चीज़ें मिलती। जैसे वो कोई बीमार होता था तो वो कहते बच्चे को बुलाओ, बच्चा बीमार होता तो कहते उसकी माँ किधर है, बच्चे को नहीं कुछ कहते थे, तुम ठीक हो जाओ, बच्चा तुम्हारे रूह से जुड़ा हुआ, तुम ठीक हो तो बच्चा ठीक होगा। अब तुम इसकी फ़िक्र नहीं कर रहा है मेरा औलाद में, मेरा बच्चे को ना कुछ हो जाए, तुम अपनी बीमारी, तो कुरान में हमारी तरफ से कोई बीमारी नहीं आती, हर बीमारी इंसान के नफ्स और अक्ल से ईजाद होती है। बाबा जी की बात पूरी हो गई। तुम्हारी तरफ से अल्लाह पाक कह रहे हैं, हमारी तरफ से कोई बीमारी नहीं आती है, हर बीमारी आपकी अपनी इंसान की अकल या नफ्स से ईजाद होती। खेल तो अकल और नफ्स की है ना, यहाँ आए तो रूह पे आए,
تو یہاں آتے نہیں, یہاں بس کھیلتے رہتے, ہائے میرا بچہ, ہائے میرا بچہ, ہائے میرا, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے, ہائے میرا بچہ, ہائے میرا خاوند, ہائے میرا یہ. سب کچھ اللہ کا مال ہے, ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ جس کا جو مال اس کو واپس چلا گیا, ہمارا تو کچھ ہے نہیں نا. تو آئی تھنک یہ چیزیں مجھے پھر اب سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ بابا جی کی جو تعلیم ہے یا جو ایکسپیرئنس ہے کہ وہ ریلیجن نہیں ہے جو ایک پیٹریارکی سسٹم میں ہمیں دیا گیا توڑ تاڑ کے. 1400 سال پہلے جو پاک پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, آپ کھڑے ہوتے تھے, تو عورت کا احترام دیکھیں, عورت کا رول دیکھیں, بی بی ختیجہ, بہت ساری چیزیں. اب تو وہ ایک مین میڈ, قرآن میں ایک اور بھی بات ہے, گروہ بنانے والوں سے ہم نفرت کرتے ہیں. تو کتنے گروہ ہیں, نمازیوں پڑھو, نمازیوں پڑھو, تو یہ گروہ ہے نا, اللہ کا کوئی گروہ نہیں ہے. اللہ کا گروہ ہے تو پھر زمین پہ کیسے گروہ بن گئے؟ تو وہ ساری چیزیں اب مجھے سمجھ آ رہا ہے, دے میک سینس ٹو می ناؤ, کہ اگر میں ادھر سے پڑھ رہی ہوں تو کیوں کہہ رہے ہیں. اور اتنی چیزیں جو آج کل ہمیں پاکستان میں جو اسلام ملا وہ اسلام نہیں ہے جو 1400 سال پہلے تھا, اس سے ڈیویٹ کر گئے, اس میں ہم نے چیزیں ایڈ کر لی, اس کو ساری جو ہدایت وہ ساری عورت پہ ڈال دی. آپ نے تو ہمارے پاک پیغمبر نے تو عورت کو مقام دیا ہوا, شادی میں, طلاق میں, بچے میں, ہاؤس ہولڈ میں, ساس سسر میں, ہر چیز کا ایک مقام دیا, ہر ایک چیز کا اصول بنایا, یہاں تک کہ یتیم بچوں کا بھی کے لیے بھی ایک اصول ہے. ٹھیک ہے, تو آل دیز تھنگز میڈ می انڈرسٹینڈ کہ جو آج ہمارا چل رہا ہے تو یہ کس نے بنایا. آپ جو بابا جی سے ملنے سے لے کے پھر ان کے ساتھ ایک ٹائم سپینڈ کیا, وہ جو دھمال سے دعا ہوتی تھی, ٹرانسفارمیشن آتی تھی, اس کے بعد پھر آپ نے دوسری دعا سورہ رحمان والی دعا بھی کروائی تھی, بہت زیادہ, جو کچھ بھی آپ ایکسپیرینس کرتی رہیں, اور اس کے بعد اب جو آپ کی لائف ہے اس میں آپ اور طرح سے ایکسپیرینس کر رہی ہوں گی ڈیفینیٹلی. تو مطلب وہ سبق کیا آپ کو ملا, اگر آپ بتائیں کہ یہ سب کیا تھا, بابا جی آپ کو کیوں ملے اور یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا تھا, یہ سب کیا تھا؟ اپنے آپ کو پہچاننا, اپنے آپ کو جاننا, اپنے نور سے, اپنے روح سے رشتہ بنانا, اور پھر آگے لوگوں کو اگر کر سکتے, کیونکہ دا اسٹوری گوز فارورڈ نا. میں نے اپنے ویسینٹی یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اگر ایک کو بھی گائیڈ کر دیا, کیونکہ آپ آئے ہیں دنیا میں, اب ہم 7 لیولز آف کانشیسنس نیچے آئے. اب میں بہت سائنٹیفک بات کر رہی ہوں کیونکہ میں نے بابا جی کا ہر سبق سائنٹیفکلی بھی سمجھا کہ ہائر کانشیسنس آپ کو روح سے کنیکٹ ہوتا, جب روح سے کنیکٹ ہو تو ہائر کانشیسنس کی انفارمیشن آتی ہے. جب آپ کانشیسنس کی لیول نیچے آتے, آپ صرف فزیکل لیولز پہ فنکشن کرتے تو بیمار بھی ہوتے. لاسٹ لیول بیماری کا فزیکل ہوتا. جب آپ نے روح کو ٹائم نہیں دیتے, روح بیمار ہوتا ہے. روح کو کیا ٹائم دینا, یکسو کرنا ہوتا, فوکس کرنا ہوتا. یہ جو بیٹھ کے قلب سے علی حق کہنا ہے یا اللہ کہنا ہے یا جو بھی جس کا بھی کوئی منترا, مطلب گورو میں تو منترا ہے. اٹ could be something like love, love, love. It could be something like امن, امن. بات یکسو کی ہے, وہ لفظ کا کوئی معنی نہیں بنے گا, اس ساتھ کنیکشن نہیں بنے گا. تو جب آپ کسی بھی اسم اعظم کو پڑھتے ہیں, چاہے وہ نور محمد صلی اللہ, وہ چاہے علی حق ہو, وہ چاہے اللہ ہو, وہ آپ کو 1 پوائنٹ فوکس دیتا ہے. اب 1 پوائنٹ فوکس پہ آتے ہیں تو یہ ساری دنیا کی جو پاسٹ یا فارورڈ یا فیوچر میں آپ اگر رہتے ہیں, آپ حال میں نہیں ہوتے. اور حال کی کہانی ہے ساری, کیونکہ ٹائم تو ہے ہی نہیں. ٹائم اسپیس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, سب کچھ حاضر ہے اس وقت. یہ سچ ہے جو ہو رہا ہے, نہ یہ پاسٹ ہے نہ یہ فیوچر ہے, یہ صرف فزیکل ریلم میں یہ. اور یہ سب کلندر لوگ تو جانتے. اب کلندر تو لا کو بینڈ کر لیتا نا,
लॉ को बेंड कर लेता ना, वो इस मकाम पे चले जाते हैं वो कि वो कानून को अपने हाथ अपने मुताबिक कर सकते हैं, उनको अल्लाह ने इजाज़त दी हुई है, या उनको वो स्किल सिखा दी गई है क्योंकि वो डायरेक्ट है, तो वो बारिश करा दे बिकॉज दे नो। मगर ये मत भूलिएगा चाइना में लॉज ऑफ यूनिवर्स, लॉज ऑफ ये सारे जो यूनिवर्सल लॉज की सारी तालीम दी जाती, जिसकी वजह से मुझे जब बाबा जान कहते थे कि एक हदीस है जिसमें प्रॉफिटिक है, अगर चीन भी जाना पड़ जाए इल्म के लिए हासिल कर, भाई एक इतने पहुँचे में पैगम्बर कह रहे हैं आप कि चीन बिला वजह तो कुछ होता नहीं, बिला वजह आप बोलते नहीं हैं, तो चीन के अंदर कोई राज है। तो जब मैंने चाइनीज़ फ़िलासफ़ी पढ़नी शुरू की तो मैंने देखा अल्लाह ये तो सारा रूहानियत है, सारे एनर्जी का खेल है, सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेल्स का एटम का खेल है, वो स्प्लिट होके फिर वो स्प्लिट, ये सारा जो है ना, ये अगर ये एटम्स है ना इनके अंदर स्पेसेस हैं, एक साइंस है, तो फिर इसका फिजिकल बॉडी अगर जुड़ जाए तो फिर ये वो नहीं बन सकता। मगर ये एक और सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत टेक्निकल हो जाती है, क्योंकि मैं आजकल बहुत और लेवल में एक किताब भी कोशिश कर रही लिखने की जो अपनी रूहानियत को एक और लेवल पे एक्सपीरियंसेस, मतलब अपने मुर्शिद के साथ एक्सपीरियंसेस और उसको एक फिज़िकल साइंटिफिक एंगल से भी लाने की कोशिश करी। लिखा अपने लिए रही, मगर क्योंकि मैं स्टडी करके, क्योंकि बाबा जान बहुत साइंटिफिक बात भी करते थे, मगर मैं उस वक्त साइंस की कोई समझ नहीं रखती थी, या फिज़िक्स या क्वांटम फिज़िक्स की कोई समझ नहीं रखती थी। तो आई अंडरस्टैंड कि ये जो भी सबक है, अगर सिंपल टर्म्स में अगर मैं एक ले आदमी को कहूँ कि भाई क्यों करें, आप रूह हैं और जिस्म आपका घर है रूह के लिए। अगर आपकी रूह बीमार होती है, और ये जितनी बीमारियां होती हैं ये मेडिसिन खा लेते हैं ना, वो उसको ठीक नहीं करता, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो फिज़िकल चीज़ से कनेक्टेड है, वो फिज़िकल चीज़ को एक हद तक ठीक करेगा, मगर व्हाट अबाउट वो जो बातें की एरियाज़ जो आपके अंदर स्पेसेस हैं, जो आपके अंदर एनर्जी है, जो आपके अंदर ब्लड लिक्विड है, ये आपकी रूह ठीक कर सकती है कि रूह इज़ एनर्जी। वो एनर्जी अगर ब्लॉक है तो यहाँ पे अब मुझे दर्द है तो हो सकता है ब्लॉक हो गया, यहाँ पे एनर्जी ब्लॉक हो गई ना, तो अब मैं अगर बैठूँगी और मैं अंदर जाके अपनी 1 पॉइंट फोकस लाऊंगी, मैं उस एनर्जी को चला दूंगी, क्योंकि एनर्जी को चलना है तो वो ज़ोर से चलेगा। जितना मैं बैठूंगी वो पुश करेगा पुश करेगा पुश करे। इसको ईथर के कॉन्सेप्ट से भी लेते हैं, पता नहीं आप लोगों ने स्टडी किया ईथर को कैसे मूव करता है स्पेस के अंदर, ठीक है ना। तो वो उसने मूव तो कराना है, तो वो फिर हेडेक भी ख़त्म हो जाती है, जिस्म का दर्द भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नूर पूरा जिस्म में गर्दिश करना शुरू किया, ब्लड भी जा रहा उस फ्लो के साथ। एनर्जी हैज़ टू मूव, अगर एनर्जी मूव नहीं की बदबू आएगी, बीमारी आएगी। तो ये समझाना किसी को और फिर उनको प्रैक्टिकल करना, करके देख लो, मगर उनको भी साइंस से समझाना ये क्या तरीका, बात रिज़ल्ट की है। रिज़ल्ट अब स्टेप बाय स्टेप, किसी को चाहत होती किसी को नहीं होती, किसी को सिर्फ बीमार से ठीक होने की चाहत है, किसी को फिर वो सिंपल टर्म्स में आप उनको इसमें आज़म पे डाल दें, आप उनको सूरह रहमान पे डाल दें। कोई फेथ की बात है ना, आप जिस चीज़ पे, अगर मैं इस बैंगल पे फेथ रखूं कि इससे ना मैं जब भी ये पहनूंगी ना तो मेरा ये काम होगा, यकीन जो है ना, यकीन बनाना ही तो हम लोगों का काम भी होता है। जो जैसे बाबा जी कहेंगे डॉक्टर्स हमारे यकीन बनाते, फिर उस यकीन के अंदर वो सीड ही होता ना, यकीन वो जो वार कर रहे होते हैं अपनी रूहानियत में, तो सीड डाल रहे ना, तो फिर अब कितने पौधे हैं, कहानी तो अपनी है ना। तो आई थिंक फॉर मी इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड शायद हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे और पहलू हैं, डिपेंड करता आपने किस लेवल पे जाना। क्योंकि मैं ज़रा खपती हूँ, मुझे जानना है चीज़ें, क्योंकि मेरा है हमेशा से खोज, और बचपन से मैंने बहुत दुख देखे। मैं एक ऐसे माँ बाप से आए थे जो प्यार नहीं था हमारे ख़ानदान में, हमारे फैमिली के अंदर नहीं था।
अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव फादर बहुत मारते थे, बेहद मारते थे। और मैंने एक चीज़ भी देखा कि अल्लाह दर्द के थ्रू बोलता है, क्योंकि मुझे कभी लोग कहते कैसे कर लेती थी, क्योंकि मुझे दर्द बनाना आता, मैं तो दर्दनाक ही थी अंदर से। मैं तो ऐसे बाप से आई थी जो नंगा करके बर्फ़ में छोड़ देते थे, जो मार मार के बुर्दा बना देते थे, जो पानी के अंदर ड्राउन करने की कोशिश की, जिनने सांस बंद करने की कोशिश की, समझ रहे ना। तो ऐसी माँ जो दरवाज़ा नहीं खोलती थी, हाँ, बाहर सर्दी में सारी रात भूखे रखती थी। मगर फिर मैं सवाल करूँ, ऐसे माँ बाप क्यों मिले थे? अल्लाह पाक ने दिए ना, ऐसे माँ बाप के थ्रू आए, तो कुछ तो सिखा रहा था ना। वो भी मेरे से शायद वो ना होते तो मैं बाबा जी से ना मिलती, मेरी खोज ना होती, मेरी मतलब कि अल्लाह पाक ने एक रास्ता बनाया होता ना अपने आप को पहचानने के। और वो दर्द ऑलरेडी इतना बना हुआ था मेरे अंदर कि मुझे पता कि बाबा जान को पता था इस बात का कि जब मैं दुआ में जाती थी तो मेरा अपना इतना दर्द बन जाता था कि मैं रेडिएट करने लग जाती हूँ। अब मुझे उसको डिस्क्रिएट करना पड़ता, क्योंकि आप अगर बिलीफ सिस्टम जो है ना, जो आप बिलीव करते वही आपके साथ होता है। तो अगर मैंने ये नोटिस की मैं हर वक्त दुखी रहती हूँ, हर वक्त दुखी रहती, हर वक्त दुखी होता मेरे साथ, तो मैंने रियलाइज़ किया बाबा जाने के थॉट्स को पॉजिटिव करो, थॉट्स को पॉजिटिव। हर वक्त नहीं सोचो कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ये किया, मेरी माँ ने मेरे साथ ये किया, जो भी उन्हें किया। माल तो तुम हमारी थी, हम तो अपना माल लेने आए। उन्होंने तो मेरे वालदा को कह दी तो हमारा माल है भाई, हम तो लेने आए। तो वो समझ में आती थी कि उन्होंने मुझे उधर से निकाला है, और ये अगर वो ना होता तो वो आते भी ना, तो शायद मैं एक नॉर्मल सी, बोरिंग सी, नम सी, दुनियावी तौर पे एक औरत होती जिसकी शादी होती, बच्चे होते, खाना पका रही होती, या जॉब कर लेती, कोई बिजनेस कर लेती, और फिर हग लिया, खा लिया, पी लिया, सो लिया, मर गए, और फिर कुछ ना किया, ना रूह को पहचाना, ना किसी के लिए कुछ दिया, ना आगे बात की है। तो ये जो है ना, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं। क्या खोया क्या पाया? खोया तो कुछ नहीं, अपने आप को पाया, अपने रब को पाया। क्योंकि ये कहते हैं ना, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो सबसे पहले अपने आप से पहचानने से रब की पहचान आई। ये पता चला कि रब अंदर ही है, कहानी सारी अंदर की है, बाहर कुछ भी नहीं है, अंदर की रियलिटी ही सब कुछ है। अंदर ठीक है तो सब ठीक है। तो इसमें खोया तो कुछ नहीं। खोया पता क्या? खोया वो सब बकवास, वो सब दुनिया जो जिसमें हम फॉल्स आइडेंटिटी, फॉल्स एक शख्सियत, फॉल्स एक क्योंकि देखो हम लोग फेमस होते हैं, तो बाबा जी को ये भी पता था, ये हमारी बड़ी मशहूर काकी है ना, तो हमारा ईगो भी चेक करते थे ना, हमारे ईगो भी तोड़ा बाबा जी ने, हमें रोडों पे चलाया, मतलब जहाँ पे कभी 5 स्टार से कम रहे नहीं। देखो अपना एक ईगो होता है ना, बाबा जी ने सब तोड़ा है ना, कि आओ हमारे कुटिया में रहो, ज़मीन पे सो और खुशी सोए, ऐसा नहीं है। तो मगर उस चीज़ ने मुझे कुछ सिखाया कि यार मैं 5 स्टार में रहने। बाबा जी कभी कहती थी हमारी 5 स्टार काकी है, 5 स्टार छोड़ के आ गई हमारे पास। तो उस वक्त ना, नाउ आई अंडरस्टैंड कि मैं वाकई बहुत गुरूर था मेरा कि मैं एक स्टार हूँ, मेरे आगे पीछे लोग घूमते हैं, जी मेरे टिकट्स आ रहे होते घर, मेरे गाड़ी आ रही होती, मुझे फर्स्ट क्लास में बिठाया जाता, सब बुत टूटे ना। तो ये खोया, जो फॉल्स ईगो था, जो झूठी एक शान में रह रहे होते हैं, जो गलत फहमियों में रह रहे होते हैं कि पता नहीं हम क्या तोप चीज़ है, कुछ भी नहीं है। कहानी रूह का है, कहानी रब का है, कहानी अपने आप का है। और फिर आप दे क्या सकते हैं, क्योंकि जब आप इस कहानी को समझते हैं ना, हकूकुल बात किसको कहते हैं? हकूकुल अल्लाह, अल्लाह ने वो आपके और अपने मालिक के दरमियान है, ठीक है ना। मगर हकूकुल बात वो है कि मैंने अगर किसी को सूरह रहमान दे दिया, वो ठीक हुए, किया ना, मैं अपने लोगों में रहता हूँ, अल्लाह रब अपने लोगों में है। तो इसलिए हकूकुल बात का दर्जा जो मुझे अब समझ में आया कि बंदगी में है रब, किताब में नहीं है। किताब आपकी गाइडेंस है, किताब आपकी बातें हैं रब की। मगर क्या फ़ायदा मैं केमिस्ट्री पढ़ूँ, वो मैं उसको इस्तेमाल ही ना करने आ जाए, तो मेरे रब अगर
लफ्ज़ों में है या बुक में है, उसका कोई फ़ायदा हुआ? ठीक है, वो हमेशा बाद में इस्तेमाल होते जब आप प्रैक्टिकल करते। तो बाबा जी हमेशा कहते हैं प्रैक्टिकल करके दिखाओ, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो मुझे प्रैक्टिकल दिखाया और सिखाया और प्रैक्टिकल करवाया। अब उस प्रैक्टिकल का जो इल्म था, जो नॉलेज आप कह सकते किताब के हवाले से, तो अब समझ रहे हैं। ठीक है, मैं उस वक्त समझ ही नहीं सकती थी। मुझे याद है, मैंने जब बहुत पहले, अगर कोई भी रिलीजन, वैसे भी इस्लाम एक रिलीजन नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है, सिस्टम है। दीन है, सिस्टम है। इट्स नॉट अ रिलीजन एंड गॉड इज़ लव। ख़त्म बात। जिसको ये समझ आ जाए ना, जिसको ये यकीन हो जाए, वो नहीं है वो अल्लाह जो डराता है, जो दोज़ख में फेंक देता है। दोज़ख तो आपकी अपनी स्टेट हो जाती है जब आप कोई अपनी बीमारी में चले जाते या किसी के साथ गलत करते या अपने नफ्स से फंक्शन कर रहे होते हैं। जन्नत वो है। बाबा जी ने हमें प्रैक्टिकल करवाया ना कि जन्नत दोज़ख की हालातें दोनों देख लो। फॉल्स ईगो, नई चीज़ हुई और क्यों नहीं हुआ, बाल खींच रही, ये आए, ये होना, आए लस्ट, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना, मेरा ये होना चाहिए, ये है ना, ये दोज़ख नहीं है तो क्या है। और आप बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं, टाइम का नहीं पता, बाबा जी के साथ वक्त गुजरा, कुछ नहीं पता। जन्नत ही है ना। भी ऐसे ये मकाम में बैठी होती तो नॉट इन द झमकट्टा ऑफ द वर्ल्ड। मैंने अपने दुनिया में, अपनी वर्ल्ड में, क्योंकि हम इस फिज़िकल डायमेंशन में रहते, मेरे रब है मेरे साथ। जिस वक्त रब वहाँ से हट गया ना, तो मैंने सब कुछ खो लिया। तो पाया तो ये। बाबा जी से क्या मिला? बाबा जी से अपने आप को, मतलब अपने अंदर का रब। आप खुद भी रब तो होते हैं ना। पहले आप बाहर के रब को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, फिर आप अंदर के रब को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। बाबा जी से सब कुछ मिला। आई डोंट थिंक दिस एनीथिंग दैट आई कैन से दैट मेरा हर रिश्ता, मेरे माँ भी थे, मेरे बाप भी थे, मेरे लवर भी थे, बिलावट भी थे, अल्लाह भी थे, रब भी थे, बहन भी थे, भाई भी थे, दोस्त भी थे। हर रिश्ता जो पाक रिश्ता होता है, जिसके अंदर कोई लालच नहीं होती है, वो एक्सपीरियंस कराया बाबा जी। क्योंकि जब दोस्त भी थे तो दोस्त का कान या दोस्त का हाथ या दोस्त का प्यार, और जब गाइडेंस चाहिए तो मुर्शद, टीचर। जब प्यार माँ का चाहिए तो गोद में लाओ, जब बाप की डांट भी चाहिए तो बाप बन के भी खड़े हुए। ऐसा नहीं करना, हमारा ऑर्डर है नहीं करना। समझ आए? तो ये सारे रिश्ते हैं ना। तो बाबा जी से क्या नहीं मिला, उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। यू कांट डिफाइन इट। आई फाउंड माई सेल्फ, बाबा जी गेव मी टू मी। ये लो काकी, अपने आप को पढ़ो, ये मेरा। आप बोलिए कि आप जैसे बाबा जी का बता रही हैं, सारा के गश्त पे जाते थे और सारा कुछ, उस सारा जो आपने एक्सपीरियंस लिया, तो आप अब जो काम कर रही हैं, तो आप अपने जो पौधे लगा रही हैं या अपने जो स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हैं, वहाँ आप को कैसा फीडबैक मिलता है जब आप वही बातें बता रही होती हैं? तो क्या क्योंकि असल में ना पता क्या होता है, मैंने ये देखा कि बाबा जी हमेशा कहते थे कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, हक हमेशा हक है, किसी भी शक्ल में हो। चाहे वो जैसे भी, मैं अपने स्टूडेंट्स को अगर मैं बता रही हूँ उनको कि सूरह रहमान सुनो या दुआ का तरीका करें, कई बार नहीं वर्क कर रहा होता, क्योंकि आपको ढूंढना फिर मैं डांस के थ्रू करवाती हूँ चीज़ें, क्योंकि मुझे पता कि वो डांस में यकसू हो जाएंगे। फिर मैं उनको देती हूँ कि अच्छा आपने 3 दफ़ा ला गया ना, और आपने घूमना है। मतलब मैं वो पहले से डिसाइडेड भी नहीं होता। वो कई बार जैसे सिचुएशन होता है, ऐसे लगता है जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि ऐसे करवाओ, तो मैं उनको वैसे ही करवा देती हूँ। और कई बार मुश्किल केसेस आते हैं, जैसे मेरे पास एक लड़की अभी भी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, मगर वो बहुत ज़्यादा लॉजिक में है। तो मैंने कहा कि वो अच्छा, सो नाउ आई हैव टू फाइंड, आई एम ऑल्सो लर्निंग वेज कि मैं उसको किस तरह से सीड डालूँ उसके अंदर। तो कभी डलता तो कभी बैक टू, वो स्नेक्स एंड लैडर्स नहीं होता, आप लैडर है, स्नेक है, तो नंबर गलत आया तो वो आगे तो नीचे, अब लैडर आ नीचे वाला, तो कभी मुझे उसके साथ लगता, मगर
मुझे लग रहा कि मुझे रिफ़ाइन किया जा रहा, क्योंकि मुझे नए नए तरीके सोचने हैं कि कैसे मैं लेके जाऊँ, मुझे अपने ही उसमें अपने सिस्टम वही होता, मगर जिसको हम कहते हैं ना कभी कोई ड्रामा बनाना पड़ता सिस्टम के क्योंकि वो बात मुंतकिल हो जाए। बाकी मैंने देखा कि मेरे साथ मेरी जितनी भी बच्चियां मुझसे सीखती हैं या कुछ, वो सिर्फ रक्स नहीं सीखती हैं, वो बहुत कुछ सीख रही होती हैं, वो खुद कहती हैं, वो खुद कहते हैं हम, वो मुझसे अटैच हो जाती हैं, वो क्लासेस मिस नहीं करती क्योंकि उनको लगता है कुछ चीज़ क्लास के अंदर है, तो रेडिएट कर रही होती, मैं इतनी अक्सू में होती तो वो रेडिएट कर रही होती, वो प्यार भी दे रही होती, तो वो भी हीलिंग चल रही होती है। तो जब भी आते मेरे क्लास में वो फ्रेश होती हैं, बात जो भी अल्लाह की बात हमेशा होती है, बाबा जी की बात हमेशा होती है, तो इट्स गोइंग ऑन एंड इट्स बट कई बार थोड़ी सी शक्लें बदल जाती हैं। कई बार मुझे बाबा जी यहाँ होते मगर मुझे बात कुछ और करनी होती, तो मुझे उनको मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे होते हैं एंड जैसे कि इट्स ओके, मैं तो हूँ, तो सिस्टम तो एक ही है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ तो एक ही है ना, हक पे लाना, उनसे कनेक्ट करना, उनको यकसू सिखाना, उनको हील करना। कितने लोग बीमार हैं आपको पता, नफ्स हमारे माशरे में मैंने जो देखा, ख़ास करके मेरे पास लड़कियां बहुत आती हैं, तो मैंने देखा माशरे की बातें इतने ज़्यादा यहाँ से बीमार है, इतनी ज़्यादा कि और लॉजिक भी इतना ज़्यादा है क्योंकि कंडीशनिंग इतनी हुई थी। तो डांस जो है ना आपको नरम कर देता, आपको पिघला देता, आपको ना ओपनिंग बना देता कि बात के अंदर चली जाए। तो कई बार मुझे टाइम लगता क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर ना बनाना पड़ता। बाबा जी तो ऐसे ना हेड्स ऑन, बस गए अंदर तो तीर चला दी और बस मतलब यू नो ये उनका तरीका था एंड आई थिंक दैट वर्कड। बट कई बार मुझे बहुत एहतियात से चलना पड़ता क्योंकि मुझे किसी को डैमेज भी नहीं करना, मुझे इस सिस्टम को बदनाम भी नहीं करना, मुझे क्योंकि मेरे पास ऐसी बच्चियाँ आती जो बहुत ही बड़े बड़े ख़ानदान की बच्चियाँ हैं और मुझे खुद ब खुद वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती कि ऐसे करो फिर ऐसे करो फिर ऐसे करो, हो जाता है। और कई बार मैं कई बार क्लास में तो अच्छा आज हम परफॉर्मेंस करेंगे, अब आप करेंगे परफॉर्मेंस, हाँ करो, मुझे पता मैं क्या कर रही हूँ, तो चाहे मैं उसी सबक की परफॉर्मेंस कर रही हूँ मगर मुझे पता मैं क्या कर रही हूँ एंड आई कैन सी द चेंज। तो वो फिर कनेक्शन वो कनेक्ट। और कहीं मेरे पास एक लड़की थी 3 साल, वो 3-4 दफ़ा रेप हो चुकी थी, गैंग रेप, बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी हालत थी उसकी, कराची की बात है। तो मेरे पास आती थी और बिल्कुल आई थी ऐसे, बिल्कुल ऐसी थी, बॉडी का तो उसका ऐसा था कि मैंने जब उसे देखा ना तो मुझे समझ आया कि इसको मैंने रक्स नहीं सिखाना, इसको ना प्यार करना, इसको हील करना, उसको रक्स का शौक था, वो कुछ फिजिकल करना चाहती ताकि उसका बॉडी खुले। तो जो वो मेरे पास बैठी तो उसने कहा, पहले तो बता नहीं रही थी, मैंने कहा बेटा आप मुझे बता दो ताकि तुम मेरे लिए एक और केस हो, मैंने तुम्हें रक्स नहीं सिखाना, मैंने तुम्हें अपने आप से मिलाना है। कहते ऐसे होता है, मैंने कहा होता है, क्यों नहीं होता, तुम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर लेना, रक्स के थ्रू करेंगे, मुझे रक्स का शौक है, मैंने कहा रक्स के थ्रू ही करेंगे। कहते मैंने नहीं हाथ उठा के दुआ करनी ये चीज़ें, मुझे नहीं। जिस बीबी के साथ बच्ची थी 22-23 साल की बच्ची थी जिसका इतना कुछ हो चुका, उसका यकीन अल्लाह से हट चुका, हर चीज़ से हट चुका होता ना, तो उसको 3 साल में उस बच्ची की तब्दीली, और वो 2 बस लेके कराची से PIB कलो पता नहीं कहाँ से आती थी मेरे घर, मैं डिफेंस में रहती थी और मिस नहीं करती थी क्लास, और वो मेरे क्लास में आती थी और वो फीस देती थी। मैंने उसका स्कॉलरशिप रखा, मैंने कहा नहीं चाहे 500 रुपये दे रही हो, फीस दे रही हो, वो 5,000 है, समझ आई। तो उसको डिग्निटी भी मुझे चाहिए था कि वो डिग्निटी फील करे अपने देने में, वो ना फील करे मैं मुफ्त में सीख रही हूँ, पता नहीं आप दूसरों को ज़्यादा अहमियत दूँ, ये 500 मेरे 5,000 है। कहते ठीक है आपा, तो इतनी खुशी से वो रसीद लेती थी, कितनी है मैं 5,000 पे किया, मैंने कहा हाँ। यू सी सो हाउ यू, पहले तो ये ठीक करना था ना,
कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना था, फिर उसको मैंने सूरह रहमान पे सुन लेती थी, पहले टिक नहीं पाती थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आंखें बंद करके बस एक आप हैबिट भी बना लो, ये कह रही थी। अच्छा मैं और एक दफ़ा करने से सोने से पहले, फिर उसको थोड़ा मेडिटेशन, रक्स के थ्रू, कैसे आंख बंद करके घूमना, कैसे आंख खोलना। आहिस्ता आहिस्ता 3 साल उस लड़की ने अपना मास्टर्स सोशियोलॉजी किया, शादी हो गई, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, 2 बच्चे, एंड शी इज़ टर्न्ड इनटू द मोस्ट कॉन्फिडेंट, खूबसूरत इंसान। और मुझे लगता कि ये बाबा जी ना होते तो ऐसे कैसे करती है, वो मुझे दे दिया था। तो ये मुझे लगता कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ रक्स नहीं सिखा रही हूँ, एक होता ना हाँ मैं रक्स सिखा रही हूँ बहुत पैसे बना रही हूँ, ऐसा नहीं होता। मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को बहुत केयरफुली चुनती हूँ कि फ़ायदा होगा कि नहीं, एम झक तो नहीं मार रही हूँ ना। तो कई बार मेरे साथ ऐसे लोग आए, नबिया भी एक वक्त में ना सीखती थी, कराची में आके सीखती थी, क्योंकि धमाल का वो समझना चाह रही थी, तो वो भी आए। कई बाबा जी की कुछ काकियाँ भी मेरे पास आए, कराची की बात कर। तो इट्स ऑलवेज वो जाता है वो, क्योंकि आपके अंदर है, अब उससे मैं अपने आप को जुदा नहीं कर सकती। तो मैं मेरे रक्स में, मेरे परफॉर्मेंस में, मेरे बोलने, मेरे उठने बैठने में वही सब कुछ है। तो चाहे मैं अब किसी बच्चे को समझा भी रही हूँ या कुछ, वो एक्सपीरियंस जो मेरे अंदर है वो कहीं ना कहीं कोई शक्ल लेके उस तक पहुँच जाती बात। ऑल माई गर्ल्स माशाल्लाह, उनको अवेयर करती रहती हूँ, शऊर भी तो देना होता ना अपने माशरे का। हमारे माशरे में बहुत प्रॉब्लम्स हैं लड़कियों के साथ, कि बॉडी के बारे में, कैसे बैठना, कैसे चलना, छुपना, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना, हंसना नहीं लाउड, बहुत से इश्यूज़ हैं। तो रक्स एक ऐसी चीज़ है, और ख़ास करके जिस सिलसिले में हम हैं, तो वो उसकी पूरी बैकिंग है उसके साथ, कि वो अनफोल्ड कर देता उस चीज़ को। फिर वो रियलाइज़ करते कि हमें एक्सेल डांस फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्सेल करना है कि रूह तक पहुंचने की बात है। तो वो जो गोल होता है ना, वो तो हो ही जाता है, क्योंकि आप सीख रहे हैं, ज़ाहिर आप बार बार करेंगे, किसी चीज़ को रिपीट पे करेंगे तो वो होगा। मगर जो उसके बेनिफिट्स हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, कि आप रूह से कनेक्ट हो जाते हैं, आप यकसू में आ जाते हैं, आप फोकस में आ जाते हैं, आपकी आधी बीमारी, मेरी लड़कियों की जो बीमारी वो आधी मेरे क्लास में ख़त्म हो जाती है, बस वो 2-3 क्लासेस के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबके लिए क्या मैसेज है? आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी, जो आपको देखेंगे ये वीडियोस, जो आपके दिल में आ रहा है, बाबा जी की तरफ से, आपकी तरफ से क्या मैसेज है सबके लिए? मैं बाबा जी से पूछूं? हाँ पूछ लें। बाबा जी कहते कहानी रूह की है, बात रूह की है, और ये सारा ड्रामा जो करते हैं ना, ये उस तक उसकी आगाही देने के लिए होती है। बाकी सारे मतलब कि सूरह रहमान भी उसी का एक टूल है, इसमें आज़म करना भी उसी का एक टूल है। और बीमारी से निकलने के लिए लोग चर्च में जाके प्रे भी करते हैं, जैसे ही लोग ये हर जगह जाते हैं। अगर बात एक ही होती है सिर्फ कि अरबी ज़ुबान में एक चीज़ की हीलिंग होती, तो फिर वो यस्सु का नाम नहीं लेते हैं किसी से। सो बात है अपने आप की, अपने से कनेक्ट होने की, अपनी रूह की, अपने आप को पहचानने की, कि खाली ना जाए यहाँ से, अपना टाइम वेस्ट ना करें और आप किसी के काम आ जाए। बाबा जी बार बार कह रहे कि ये जो तुमने हुकूक़ल बात की, ये मैंने नहीं कि ये बाबा जानी ने मेरे मुंह से निकलवाई, कि उसकी जो अहमियत है, कि देखो ना एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, और ये एक मैसेज है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो लोग दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते, और सोचो कि एक सूरह रहमान के सुनने से या एक आंख बंद करके अपने आप से राब्ता करने का
आपको उसके बदले में क्या मिलता है, और उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, और एक डॉक्टर आपसे 10 लाख लेता है एक ऑपरेशन के लिए, आपको कैंसर कह के आपको फारिग कर देते हैं। मेरी खुद की वालदा ठीक हुई, उनको पेल्विक का कैंसर था, वो नेशनल हॉस्पिटल में आईसीयू में थी, और फिर उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, डॉक्टर्स ने जवाब दिए। मैं हॉस्पिटल में थी, बाबा जी हमारे ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि कुछ 11 दफ़ा इनको सूरह रहमान जो है ना आईसीयू में है, उनके हल्की आवाज़ में ना उनके कान के पास, और 3 महीने में आपकी वालदा उठ के चलेंगी, ये बाबा जी ने मुझे ख्वाब में क्लियरली बता दी। हालांकि मुझे डॉक्टर, मेरा भी एक होता ना आप डॉक्टर की, और मुझे फिर ना मैंने डॉक्टर की बात मानी नहीं है, मैंने उनको ऑपरेशन भी नहीं करने दी। मैंने ना अगर इन्होंने जाना ना काट पीट के नहीं भेजना, हमारा एक तरीका है, हम उसको देखेंगे, ऑपरेशन नहीं करना। उस रात को बाबा जी ख्वाब में आए, मेरा यकीन था, तो मैं सूरह रहमान तो चला रही थी बहुत हल्की आवाज़ में, तो उन्होंने हुक्म दिया था 11 दफ़ा हर घंटे के बाद चलाएं, हर घंटे के बाद। तो आईसीयू में मैं ही होती थी साथ, तो हल्की आवाज़ में अपना फ़ोन लगा के ना अम्मी के जैसे बिल्कुल कान के ना साथ हर वक्त चल रहा होता था। एंड शी वाज पैरालाइज्ड एक साइड से। तो कितना पैसा हमने दिया उसके लिए, बट वो बिल्कुल उस लेवल पे जा चुकी थी क्योंकि वो मुझे बता नहीं रही थी, क्योंकि वो मुझसे अलग रहती है। तो जब सब कुछ हुआ, जब वो गिर गई थी या जो उनका हेमरेज हो गया था सब कुछ, वो काफ़ी आगे जा चुकी थी बात। हालांकि पहले उनको बताना चाहिए था कि हमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो बता ही नहीं रही थी। वो बड़ी स्ट्रांग भी है, मेरे ख्याल वो ज़रा ईगो होते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। 3 महीने में मेरी वालदा चल रही हैं, अब पैरालिसिस कोई नहीं है, लगता ही नहीं कि उनका कोई, कभी चीज़ें भूल जाती हैं। उसका जो साइड इफ़ेक्ट शायद इसका हुआ कि मेमोरी 82 इयर्स की है, वो चल रही, फिर रही, खा रही, पी रही, सारे रोज़े उन्होंने रखे। सूरह रहमान एक ऐसी चीज़ जो बाबा जी का गिफ्ट है इंसानियत को, पाकिस्तान, दुनिया में सबको, ये उनका गिफ्ट है ना, उन्होंने सबको ये दिया हुआ। तो यकीन बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत है, शदीद ज़रूरत है। हमारे आवाम गरीब आवाम है, उनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं होते कि वो कुछ करे, पैसे नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा उसमें चले जाते हैं, यकीन भी नहीं बिल्ड इतना होता है। सो आई फील दैट बेसिकली जो ये काम हो रहा है जावेद साहब कर रहे हैं, शाकिर उज़ैर साहब कर रहे हैं, जो भी बाबा जी के काके हैं सारे, वो लोग दरबार पे जाते हैं बाबा जी के। सूरह रहमान उनका गिफ्ट है सबको, सिंपल सा एक फ्री गिफ्ट है। तो मेरे ख्याल में जितने हमारे ग्रुप के लोग हैं वो जितना फैला सकते हैं वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल जो कोई, ये नहीं कैसे कोई नहीं कर रहा, हर अपने दायरे में कर रहे हैं। बट सिर्फ ये कह सकती हूँ कि अपने पे यकीन रखो, अपने को पहचानो और अपने आप को टाइम दो। अगर आप अपने आप को सिर्फ 20 मिनट भी दे दो ना, दिन में एक दफ़ा भी दे देना, बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप रूह से कनेक्ट हो। आप जब तक जिस्म में रहेंगे आपको कुछ नहीं बनना। ये सिर्फ जिस्म का ड्रामा नहीं है, ये रूह की कहानी है। जिस्म आपकी रूह का पूरा घर है और उस घर को चलाने वाला रूह है। तो रूह तक पहुंचने की कोशिश करो, ये मेरा पैगाम। निकी जी, आप बाबा जी की इतनी लाडली और लाडले तो सभी थे मेरे ख्याल प्यार में। वाली काकी हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अब जैसे कोरोना का बहुत ज़्यादा मसला हुआ है और लोग अब इतना सुन भी नहीं रहे और निकल रहे हैं बाहर और सारा, तो आप अपने तरीके से बाबा जी से कहें कि ये ख़त्म कर दें बस ना ये मसला। धमाल ही डाल सकती हूँ। चलें, ठीक है, ठीक है ना, मेरे ख्याल में मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि देखो कोरोना है जो भी है, मगर जिसको यकीन है कि उसको होगा, ठीक है, एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी, तवनाई की बात है ना, तो तवनाई ना रखो, अपना यकीन बना के रखो, मगर अपने साथ साथ एहतियात भी करना ज़रूरी है। मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अब गाड़ी आ रही सामने और मैं को आ बैल मुझे मार, मैं साइड पे होंगी ना, मुझे नज़र आ रही कि चीज़ है, अब कोरोना आ रहा है सामने से, अब साइड पे हो जाओ, एक बात करें।
تو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے, سب کچھ بہت ضروری ہے, مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس کو اتنا حاوی نہ کریں. لوگوں نے اس کو اتنا حاوی کر لیا, اور لوگوں کو یس آپ نے اپنا خیال اس لیے کرنا کہ ایک وائرس ہے وہاں پہ باہر, آپ چھوٹے چھوٹے مارکیٹس میں جائیں گے اور اگر وہاں ہے تو ضرور پھیلے گا, اس کی ثبوت ہے, ہم نے جانا فزیکل ایویڈنس پہ, ٹھیک ہے نا. اگر آپ روح تک پہنچتے اور آپ ٹھیک ہوتے تو ایک فزیکل ایویڈنس فزیکل سیلف میں مل جاتا. کیا فزیکل ایویڈنس کہ میں ٹھیک ہو گئی, مگر کیا کس کو ٹچ کیا, روح کو. تو جب آپ باہر جا رہی ہیں ہمیں پتہ کہ یہ وائرس فزیکلی ٹرانسفارم جمپ کرتا ہے, تو ایک فزیکل انفارمیشن ہے نا, تو اس انفارمیشن کے مطابق جیسے ہم کہتے ہیں ایک طریقہ کار, آپ نے ایسے بیٹھنا, آپ نے آنکھیں بند کرنی, آپ نے 3 دفعہ کرنا, 7 دن آدھا گلاس پانی رکھنا, 3 دفعہ اللہ کہنا, آنکھیں بند کرنی, پھر کھولنا, پھر 3 گھونٹ میں پینا, 5 دفعہ علی حق کہنا پڑھ کے, آپ نے ایک سسٹم ہے نا. تو اسی طرح کورونا کے لیے بھی ایک سسٹم ہے کہ آپ نے اپنے گلوز پہننا, ماسک پہننا, آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ زیادہ کنجسٹڈ ایریاز میں نہ جائیں. اور دوسری چیز سورہ رحمان سنیں, سارا قوم سورہ رحمان سنے. پرائم منسٹر کو کہنا چاہیے عمران خان صاحب کہ ٹی وی پہ چلائیں, ہر وقت سورہ رحمان چلائیں, دن میں 10 دفعہ چلائیں, اور لوگ آنکھ بند کر کے سنیں, ہر وقت اس کی وائبریشن چلتا رہے, پاکستان صاف ہو جائے گا. اور ہمارے بابا جی جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے یہ نہیں چلنا, ختم ہو جانا, یہ لمبا نہیں چلے گا, یہ ایک ہدایت کے لیے ہے. یہ اگر ہم, میں تو ویسے مذاق کر رہی تھی, مگر ایک اور بھی چیز ہے, کوئی بھی چیز آتی ہے جیسے بیماری بھی آتی ہے, وہ جیسے دکھ کے تھرو اللہ بولتا ہم سے, تو یہ بھی کوئی ہدایت ہمارے لیے آیا ہے. دیکھو نا لوگ ایک دوسرے سے, یہ موبائل فون ہے اسی میں پڑے رہتے ہر وقت, رشتہ انسان سے بات نہیں کر رہا ہے, انسان اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم. اور اللہ پاک نے یہ بھی کہا کوئی نہیں مجھے کسی کی عبادت چاہیے, کعبہ بھی بند کر دیا, سب کچھ بند کر دیا, بند کر دیا نا سب کچھ, وہ نا, نہ کوئی چرچ ہے, نہ ویٹیکن ایکٹیو ہے, نہ کعبہ ایکٹیو ہے, نہ حج ہو رہا, نہ کچھ ہو رہا. تو اللہ کے گھروں میں بیٹھ کے نا اپنا سورہ رحمان سنو, اپنے آپ کو ٹھیک کریں. مطلب کہانی اندر کی نا, آپ ہی آئی تھنک اٹس ریفلیکشن ٹائم, غور و فکر. قرآن نے بار بار کہا غور و فکر کرے, غور و فکر. تو میرے خیال کرونا صرف اور صرف سب کو غور و فکر کروا رہا ہے, جو ہم شاید نہیں کرتے, اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے, اسٹوڈیو چلیں, چلیں لیٹس گو. چلیں جی. وہ جانے میں
दिखेरा मुझे वो जोत जगाए राजा मेरा बीन धर्म राम जा है कुल खुदाई नहीं जाना परदेस जिस राझे संग सांस जुड़ी वो राझा है इस देश रे मैं नहीं जाना खेड़िया देना मैं नहीं जाना खेड़िया